Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. Om will be longer, louder, and clearer, followed by prayers to Rishi Patanjali. Inhale. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्. Put your hands by your side. With inhalation, take your hands up. Inhale, stretch. And slowly, with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva. Jagat Guru, Shri Krishna,
and your Nija Guru, your personal Guru, and to all the Rishis, Munis, Maharshis, and Acharyas, all the Siddhas and Sadhakas too. To reach the highest, help us to also go higher and higher, and to the highest, to the Kaivalya in Samadhi Avastha. Please connect to them so that we all can reach the Siddhi of Samadhi and attain Kaivalya in this very life itself. Slowly come up. If you have taken your hands up, allow your hands to come down. Namo Namaha. Welcome to not wisdom only, realization of Samadhi, of Kaivalya. What is yoga? We'll go through fast. What is yoga? Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha. When we are using word yoga, we are using word yoga in two ways. One is yoga avastha, state avastha, realization, correct? And the second is process through which we reach the realization. Barabar? To that, we through this process, we can reach to that yoga avastha or realization, kaivalya or emancipation, moksha. So when we are talking about yoga as avastha, so which avastha? Samadhi avastha. So do we attain samadhi? What is samadhi? Samadhi is the practice. Correct? Is samadhi a practice or not? Dharana, dhyan. So dharana, dhyan and samadhi all comes under 8 angas. Yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan and samadhi. So even samadhi is the one of the 8 angas. So it is practice or no? It is practice also. At the same time, it is result also. Same way, dharana, dhyan and samadhi. All the 3 are result also. At the same time, it is leading and it is the process also. It's a step also. When you practice dharana, you reach to dhyana. When you do dhyana, when you practice dhyana, you can reach to samadhi. So dharana, dhyana and samadhi, all the 3 steps are process, practice, step to go higher. At the same time, it is the attainment. समाधि के बाद का कोई स्टेप है क्या? समाधि के बाद का कोई स्टेप है कि ये करेंगे तब जाके कुछ और मिलेगा? नो. समाधि इज द हाईएस्ट स्टेप, राइट? सो अगर कुछ चीज की प्रैक्टिस करनी है तो किस चीज की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है? हमें समाधि की प्रैक्टिस करनी है. इसीलिए हम लोग ने लास्ट क्लास में बात किया, समाधि एक लेवल की है क्या? हाँ, समाधि इसीलिए एक लेवल की नहीं. हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं समाधि की. लेकिन तो हमें समाधि मिलती नहीं मिलती है, अलग अलग लेवल की समाधि मिलती है. और इसलिए हम लोग ने क्या बोला था, कौन से लेवल से कौन से लेवल पर? एकदम बड़ा बड़ा अगर बताए, एकदम क्या बोले, वेरी ग्रॉस वे में अगर उसका डिस्टिंक्शन बताए तो सबीज समाधि द स्टार्टिंग, बीज के साथ कोई ना कोई थॉट है उसके साथ की सबीज समाधि से लेकर के कोई भी बीज नहीं रहना चाहिए, कोई भी थॉट नहीं रहना चाहिए, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ समाधि जहां पे एक्चुअली में कैवल्य होता है, राइट? हाँ. सो वो वाला कौन सा है कि एक भी थॉट नहीं बचा? उसको कहेंगे निर्बीज समाधि. सो सबीज समाधि से निर्बीज समाधि के बीच में कितने हैं? 5 है, 4 है, 25 है, 50 है? कितने स्टेजेस है? कितने हो सकते हैं?
कितने होने चाहिए? बहुत सारे हो सकते हैं मैम। बहुत सारे हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, राइट, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। करेक्ट, करेक्ट। अगर हम लोग ने फास्ट ट्रेन पकड़ी है, ओके, वंदे भारत या ऐसे कोई, करेक्ट, वो अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही पता चला कि वंदे भारत भी फास्ट है, और हमारी पहली पुरानी वाली कौन सी थी, शताब्दी। ओके, वंदे भारत और शताब्दी के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस, मुंबई से, यहां से, बॉम्बे सेंट्रल से, लेकिन पहुंचने में, क्योंकि मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, शताब्दी तो शताब्दी, उसमें भी वही खाना मिलता है वगैरह, ये सब कुछ है। बोले और कुछ नहीं, 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। यू अंडरस्टैंड? हमें लगता है फास्ट है हमारा, हाँ ठीक है फास्ट है, करेक्ट, डिपेंड्स व्हाट ट्रेन यू हैव टेकन। इफ यू हैव टेकन एक्सप्रेस ट्रेन, करेक्ट, देन ऑल द स्टेशंस विल कम, छोटा मोटा, बड़ा बड़ा, नो इट विल नॉट। हु कैन टेक एक्सप्रेस ट्रेन? पैसा है, क्योंकि बहुत सारे अपने अपने देख सकते हैं ना, फर्क पड़ जाता है पैसे में भी। ओके, वो बापू गाड़ी एकदम सस्ती, मेरे को किसी ने बोला कि यार इसमें तू रोती क्या है, बोला 3,500-4,000 रुपये वो लोग कुछ लेते, और वो तत्काल कराएंगे या ऐसा कुछ कराएंगे तो इसमें ये ऐड होता है, वो ऐड होता है, वगैरह वगैरह। ओके, मैंने बोला नहीं नहीं वो, और एक्चुअली एक दिन किसी ने वो कंपेयर भी किया था कि इससे तो मेरा है ना वो फ्लाइट का भाड़ा सस्ता था। मैंने बोला कि वो ठीक है फ्लाइट का, लेकिन घंटे कितने जाते हैं, इक्विवेलेंट, करेक्ट, वहां जाओ पहले तो एयरपोर्ट तक, फिर वहां पे रुको वगैरह करके। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घर के स्टेशन एकदम पास में है, मेरे को सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता मेरे लिए कौन सा है, ये क्यों, वेरी 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 नियर। मैं 20 मिनट पहले निकलूंगी तो भी आराम से स्टेशन पे, नो वेटिंग ओवर देयर, सिक्योरिटी के लिए ये नहीं वो नहीं, किसी ट्रेन में बैठे फटाफट फटाफट वहां पे पहुंचो। ओके, सो हु वी सी व्हाट, कंफर्ट, यार एयरपोर्ट तक पहले तो जाने का, फिर वहां पे 2 घंटे बैठने का, फिर मिले, फिर वापस एयरपोर्ट से जहां पे भी हमें जाना है उसके लिए, तो अल्टीमेटली वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम, मोर एनर्जी। कितना भी कुछ करो, कितनी भी कंफर्टेबल जर्नी है वो 2 घंटे की, लेकिन उसके आसपास की जर्नी, सो हु विल टेक दैट, जो एयरपोर्ट के पास रहता है, या आई डोंट माइंड वो ट्रेन ट्रेन की वो खिचपिच खिचपिच मेरे को नहीं चाहिए, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट। हाँ, what is my need, what is availability, what I like, there are people एयरपोर्ट के एकदम पास में ही रहते, लेकिन उसको फोबिया है फ्लाई करने का, विल दे फ्लाई? कितना भी उसका पैसे का कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, विल दे फ्लाई स्टिल? नो दे विल नॉट, वाई? क्योंकि वो ले ही नहीं सकते। सो देर आर innumerable steps, innumerable stages of samadhi be possible. Everybody will need to go through all the stages. If I'm taking express train, do I have to go through all the chota mota station also? No. Depends what path, how perfect you are, how fast you are, what are your likings. According to that, you have chosen your path. So depends, right? So the same way, there are so many siddhis, and we all don't go through all the siddhis. We don't need. लेकिन जो भी मैंने रास्ता चुना है, वहां वहां पे जो जो भी मेरे को कैपेसिटीज की जरूरत पड़ेगी, पावर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सिद्धियां मेरे रास्ते में आती है, so that I can use that bonus and go higher. Exactly like that. We may not go through all the stages, and there are not only 3 or 4 stages of samadhi. Though we mention broadly we mention 4, 5, 6 stages of samadhi. And main stations mostly आते हैं कि नहीं आते हैं? The station from where you start and the destination वाला स्टेशन, वो तो सबका आएगा ही, क्या आएगा कि नहीं आएगा? Yes. So there are main stations which everybody go through. But in between depends on what path you have chosen, what capacities you are. अगर आप मृदु है, ठीक है ना, आराम से जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को जर्नी में बहुत ज्यादा मजा आएंगे ना, थेपला लेके जाएंगे नो, वो क्या आलू की सब्जी लेके जाएंगे, और रास्ते में जो जो भी आएगा मंगवाते जाएंगे। हाँ, अभी वो नया नया मेरे को वो भी समझ में आया, यू कैन कॉल फॉर फूड ऑन द वे,
राइट। हाँ, तो वो टाइम पास है भाई, है ना। हाँ, क्योंकि नहीं, जर्नी हमारी हैप्पी हैप्पी होनी चाहिए। सो लेट होता है, ये होता है, जो भी होता है, फिर खा करके सो जाओ। सी ऑल दैट प्लस माइनस हैपेंस according to the path, the way, or according to how fast you want to go, how slow you want to go। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, नहीं, रिमेन फोकस, फट 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 फट, आई हैव टू गो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एस्केलेटर पे चलते हैं हम लोग, या तो एयरपोर्ट पे वो जो बेल्ट रखा है, करेक्ट। हाँ, यू मस्ट हैव सीन, यू ऑल्सो मस्ट हैव डन मेनी टाइम्स, व्हाट वी डू, वो चल करके लेके जा रहा है ना। एक्सकेलेटर का काम क्या है, वो हमें ऊपर पहुंचाए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऊपर जा रहा है तो भी अब वो ऐसे 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 चढ़ करके ऊपर जाने की कोशिश कर। देर इज नथिंग नो, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। यू अंडरस्टैंड, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और या तो अवस्था, कभी हम लोग भी ऐसे बहुत ठीक है, फिट है, फाइन है, थके नहीं है, तो हम भी चले ना, क्योंकि चलो ना पीछे बहुत गद्दे है, फटफट करके ऊपर चले जाए। कभी बहुत थके हैं, हाथ में बहुत सामान है, तो रुकना, क्या फर्क पड़ता है। Correct, depends on the state of mind also. So like this, everybody go through different stages of siddhis, exactly like that. Samadhi itself is a siddhi, and so we all go through different stages of samadhi in different time. Correct. But do we go through all the vrittis? All the vrittis are बहुत strong है हमारे में, नहीं, exactly like that. But we learned all the vrittis, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 5 में से हमारी होगी, बराबर। ये बनाया तो है, सिर्फ उन्होंने कहा तो यूनिट्स तो 5 ही दिया है, बराबर है। एग्जैक्टली लाइक दैट, समाधि की जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो स्टेजेस है, वो कोई 500 नहीं दी है, ऋषि पतंजलि ने few of them has given। in that also all we may or we may not go through, so they are different stages। okay, and so we have said yoga is stage, samadhi avastha, or yoga is a process। when it is a process, we do yam niyam आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो करते तब हम आगे पहुंचते हैं। ओके, सो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हम लोग जब करते रहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते रहते हैं, तो क्या मिलता है, क्यों करना है ये, अष्टांग योग का, योग अंग का फॉलो क्यों करना है, योग अंग को फॉलो क्यों करना है, ये सूत्र लास्ट टाइम भी देखा था। शुद्धिकरण के लिए, हाँ, बाह्य शुद्धिकरण, यस, फिर से बोलो। शुद्धिकरण शुद्धिकरण शुद्धि करने के लिए, सो अशुद्धि को क्षय करने के लिए, जो जो भी हमारे अंदर अशुद्धियां है उसको क्षय करने के लिए। कौन सी अशुद्धियां है, शरीर को साफ करना है। हाँ, हमारी अशुद्धि, मेन अशुद्धि, बाय द वे, शारीरिक अशुद्धि भी क्यों होती है, शारीरिक अशुद्धि, किसी को बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, या तो और कोई प्रॉब्लम होते हैं, और आयुर्वेदिक के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पेट साफ करना, Anything पेट and साफ, everything, पेट पेट साफ साफ नहीं होता है। पेट साफ करेक्ट करो पहले। सो इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, इंटरनल किसका घर बहुत गंदा होता है, क्योटिक होता है, जिसका mental state, you understand, it is directly related, so it is never outer, it always starts from inner, how you are। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी हमारे एक टीचर का इंट्रोडक्शन देती थी ना, कि शी इज इंटीरियर डिजाइनर, सो इंटीरियर डिजाइनर इन ऑल वे, राइट। we are trying to make our interior so good, so happy, so perfect, so automatically
that will lead to good exterior. तो अशुद्धि बाहर है कि अंदर है? अगर बाहर है तो बाहर क्यों है? क्योंकि अंदर है इसलिए वो बाहर है। करेक्ट, इंटरनली वो प्रॉब्लम है, इसीलिए आउटर एक्सटर्नली इज ऑलवेज द सिम्टम्स। ओके, किसी को पिंपल्स हुआ उसका मतलब क्या? कि उसका अंदर इंटरनल सिस्टम इज नॉट राइट, क्लेंजिंग इज नीडेड इंटरनली। And so when we are saying yama niyama, yam niyam मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ग्रह, they all are internal or external? Internal. इंटरनल। एंड द रिजल्ट कम्स ऑन एक्सटर्नल ऑल्सो, कि मेरे आजू बाजू Yes. का जो भी कोई है हैप्पी हैप्पी होने लगता है, राइट? या तो मेरे तरह अहिंसक बनने लगता है। करेक्ट, यस। सो इट इज ऑलवेज द इंटरनल अशुद्धियों को दूर करना, इंटरनल शुद्धि। सो अष्टांग योग हेल्प्स अस फॉर अशुद्धि क्षय। और जैसे ही अशुद्धियां दूर होने लगती है, क्या साफ होने लगता है? कौन सा मन. वाला कांच साफ होने लगता है? चित्त, चित्त. चित्त, हमारा मन का कांच साफ होने लगता है, मन क्लीन बनने लगता है। सो चित्त की शुद्धि होने लगती है। और चित्त की शुद्धि इज व्हाट? चित्त को शुद्ध करना है तो किससे शुद्ध करा है? चित्त के ऊपर मन. क्या अटका है जिसको साफ हमें करना है? अविद्या का आवरण. ओनली अविद्या का आवरण। नो. चित्त के ऊपर क्या है जिसका डेफिनेशन अभी आकाश ने बोला, एंड ऋषि पतंजलि ने वो वृत्ति, फर्स्ट वृत्ति, डेफिनेशन। वृत्ति, हाँ, वृत्ति। हमारी वृत्तियों की वजह से हमारा चित्त एकदम डर्टी डर्टी, यू नो अगर अगर बहुत टाइम तक वो कांच भले क्लीन है लेकिन वो कंटिन्यूअसली हवा वगैरह उसके ऊपर लगता रहता है, तो उसके ऊपर हवा वगैरह की असर हो करके वो कितना ओपेक बनने लगता है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट अवर माइंड, अवर चित्त, उसका बेचारे का क्या हाल होता होगा, क्या अश्र होता होगा, राइट? यस। सो ये सारी चीजें हमें साफ करनी है। और जैसे ही सारी वृत्तियां साफ हो गई, क्या मिलेगा? Yes. योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय। क्या होगा? कांच एकदम साफ हो गया, तो कांच के नीचे है क्या? ज्ञानादित्य ज्ञानादित्य। कांच के नीचे कौन है बसा हुआ? प्योर कॉन्शियसनेस, पुरुष। करेक्ट। सो पुरुष ख्याति, आत्म ख्याति, या तो विवेक ख्याति। करेक्ट, हाँ। सो दैट ज्ञान दीप्ति, हमारे पुरुष का जो ज्ञान का प्रकाश है, ओके, दीप्ति मीन्स प्रकाश, दैट वी विल गेट। एंड ये ज्ञान दीप्ति विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू विवेक ख्याति की हु इज प्योर कॉन्शियसनेस। मैं चित्त को प्योर कॉन्शियसनेस समझती थी, पुरुष समझती थी, मैं चित्त को पुरुष समझती थी, मैं मन को पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस समझती थी, मैं बुद्धि को प्योर कॉन्शियसनेस समझती थी। करेक्ट, मैं मेरी इंद्रियों को प्योर कॉन्शियसनेस समझती थी। इसके बदले में मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि व्हाट इज प्योर कॉन्शियसनेस ऑल अबाउट, एज वेल एज बाकी का जो भी कुछ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, ऑल दैट इज व्हाट? प्रकृति। एंड सो पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, उसकी समझ को हम क्या कहते हैं? वी ऑल नो इट। पुरुष क्या है? पुरुष ख्याति। प्रकृति क्या है? प्रकृति ख्याति नहीं बोलते, लेकिन पुरुष एंड प्रकृति बीच का जो डिफरेंस हमें समझता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटिंग नॉलेज को क्या कहते हैं? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति। एंड दैट्स व्हाट ऋषि पतंजलि सेज, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, दैट लीड्स टू आ मीन्स लीड्स टू विवेक ख्याति। एंड विवेक ख्याति की वजह से मुझे पता चलता है कि ये प्रकृति की वजह से मेरी वृत्ति बनती है, प्रकृति की वजह से क्लेश बनते हैं, प्रकृति की वजह से ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष सब कुछ है। एंड सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू प्रकृति, कनेक्ट टू प्योर कॉन्शियसनेस। दैट इज व्हाट द प्रत्याहार इज। एंड देन व्हेन वी सी पुरुष फर्स्ट टाइम, उसके ग्लिम्सिस मिलते हैं। बाय द वे, वो फर्स्ट टाइम पुरुष के ग्लिम्सिस कब मिलते हैं? Did ऋषि पतंजलि talk about it? अच्छा, वृत्तियों को हटाने के लिए ऋषि पतंजलि ने क्या कहा है? वृत्तियों को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ऋषि पतंजलि ने क्या अपनाने के लिए कहा है? अभ्यास वैराग्य ईश्वर। अभ्यास एंड वैराग्य।
अभ्यास करेंगे और उसके बाद अभ्यास एंड वैराग्य दोनों साथ में कहा है, राइट? हाँ, सो अभ्यास करेंगे एंड वैराग्य करेंगे, इसलिए ऋषि पतंजलि ने कहा है अभ्यास करने करो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। अभ्यास क्या है? स्तव्यत्न। वैराग्य कैसे करना है? दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। उसके बाद में वैराग्य क्या है? कहा है कि नहीं कहा है? भूल गए थे? कहा था? हाँ, तो उन्होंने कहा था वशीकार वैराग्य, यतमान वगैरह हम लोग ने समझ लिया। उसके बाद में ऋषि पतंजलि ने क्या कहा? वशीकार वैराग्य आना चाहिए। वशीकार वैराग्य मतलब क्या? वशीकार मतलब क्या? वशीकार मतलब क्या? कंट्रोल करना, हाँ, वश में कंट्रोल करना। करना, वश में लेना। किसको वश में ले रहे हैं हम लोग? चित्त को, बराबर। वृत्तियों को निकाल रहे हैं, वैराग्य, वृत्ति का वैराग्य, विराग। ओके, सो अगर हम चित्त को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल है, ओके, तो वो जो वशीकार वैराग्य है, तो कब कहेंगे कि मेरे मन पे मेरा कंट्रोल है? जो सुनी हुई बात है या तो देखी हुई बात है ना, वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ओके, सो वशीकार का डेफिनेशन क्या दिया था ऋषि पतंजलि ने? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णास्य। जो दृष्ट विषय है, देखा हुआ विषय है, एंड अनुश्रविक विषय है, सुना हुआ विषय है, उसकी इच्छा भी नहीं रही। या तो यू वो भोग लिया, या तो नहीं भोगा है, लेकिन पता चला कि भाई ये शादी के लड्डू खाने वाले को भी बहुत तकलीफ होती है, नहीं खाने वाले को भी। सो यू डिसाइड व्हाट, करेक्ट? हाँ, सो लाइक दैट यू आइदर यू गो थ्रू इट और you understand it. Any which ways, whatever is your system, you go through it. But finally we come to know, we get the result कि यार भाई अभी समझ में आ गया मेरे, I got it. Correct? ऋषि पतंजलि says this वशीकार वैराग्य comes जब देखा हुआ या तो सुना हुआ जो भी मेरे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर की कोई इच्छा नहीं रही, लालसा नहीं रही, तृष्णा नहीं रही। लेकिन लेकिन आजू बाजू में बहुत कुछ है कि नहीं, तो वो बार बार लगातार आता रहेगा कि नहीं? जो था उसको निकाल दिया, लेकिन आजू बाजू है, यू नो, जो भी था उसको निकाल दिया, लेकिन आर वी श्योर कि नया और कोई इच्छा नहीं होगा? आर वी श्योर? नॉट श्योर। इसलिए ऋषि पतंजलि ने कहा कि यस, हाईएस्ट वैराग्य इज वशीकार वैराग्य। ऐसे कहा क्या ऋषि पतंजलि ने? नहीं, उसके बाद के सूत्र में क्या कहा? हाईएस्ट वैराग्य कौन सा है? गुणवै तृष्ण। हाँ, गुणवै तृष्ण। गुणा वै तृष्णा। क्योंकि गुण रहेंगे आजू बाजू में, मतलब प्रकृति आजू बाजू में है ही। आज मैंने मास्टरी ले ली, फिर वो कल नया गुलाब जामुन आया, या तो नवी वेराइटी आई। अभी मैं मैगी नहीं खाऊंगी, लेकिन बोलेंगे वीट मैगी है, या जो भी है वो करे हमें, अच्छा लेट मी ट्राई समथिंग लाइक दैट, यू नो, यू अंडरस्टैंड। कोई ना कोई चीज हमें ल्योर कर सकती है। इसलिए ऋषि पतंजलि ने क्या कहा? वशीकार वैराग्य इज वेरी नाइस, वेरी गुड, यू हैव रीच्ड टू हायर लेवल, बट इज इट द हाईएस्ट वैराग्य? हाईएस्ट परम वैराग्य कौन सा है? जब कोई भी चीज की इच्छा ना रहे। अभी कोई भी चीज की इच्छा कब ना रहे? कोई भी चीज हमें क्यों कभी ले और क्यों नहीं कर सके? हम लोग ऐसे बोलते ना, वो एकदम नित्यानंद जी है, उसको कुछ दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। अंडरस्टैंड? देर आर पीपल, हाँ, उसको कोई चीज की पड़ी नहीं होती है। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? हाँ, इसको हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? जिसको कोई भी इच्छा ही नहीं रही अभी। बैरागी। मार खा खा के ये लेवल आता है नहीं, यू नो, दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्व्स कि भाई उनको कुछ खाने को दिया, ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया। यस यस, राजश्री बोलो, कौन कौन? योगी। योगी। बैरागी। कोई इच्छा ही नहीं रही, क्यों? गुण वै तृष्ण हुआ तो, लेकिन वो कब हुआ? या तो, है ना, हम लोग ने हमेशा कहा है कि जब तक बेस्ट से बेस्ट मेरे पास है, तो एरा गेरा नथु खेरा मेरे को वो कर सकेगा क्या? नहीं। तो ये गुण वै तृष्ण कब डेवलप हो सकता है? वशीकार के लिए प्रयत्न किया जब पुरुष की ख्याति होती है, when you know who you are actually। फिर हमें छोटे छोटे प्रकृति के साथ में कनेक्ट करने का मन होगा क्या?
वो ऐसे बोलेगा तू ये करेगा ना तो मैं तेरे को ये लेवल दूंगा वो लेवल दूंगा, कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोले कि आप लोगों का सबका मुझे मालूम नहीं है, इसलिए अगर कोई मेरे को बोले कि अगर अगर तू ऐसे करेगी ना तो तेरे को है ना मेरे कॉलेज में है ना मैं टेम्पररी प्रोफेसर की जॉब दूंगा या दूंगी। मैं क्या बोलूं, भवाने दे भाई। यहाँ पे जम के बैठी हूँ 25 साल से। करेक्ट, विल दैट ल्योर मी? व्हाई नॉट? कोई 500 रुपए वही। का इनाम देगा, विल इट ल्योर मी? क्योंकि मैं 5 लाख पे, 50 लाख पे, 5 करोड़ पे, 25 करोड़ पे अबजों पे बैठी हूँ, उसको वो डिस्काउंट उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, उसको उसको उसकी असर होगी क्या? उसके पीछे जाएगा भी क्या? नहीं जाएगा। नहीं, because they have attained or they have got or they are connected with the highest thing. Exactly like that. जब we are with Purusha, when we connect, we start connecting to Purusha, when we start getting the glimpses of Purusha, क्या होगा? क्या होगा? Complete Krishna. 1 second. Okay, and so ऋषि पतंजलि says तत्परम पुरुष ख्याति, तत्परम उससे भी हाईएस्ट, वशिकार से भी हाईएस्ट जो है परम वैराग्य, गुण वैतृष्ण्य वैराग्य, दैट लीड्स टू और बिकॉज ऑफ इट कम्स बिकॉज ऑफ पुरुष ख्याति। ओके, नाउ दिस सूत्र सेज दैट वी हैव रीच्ड टू द नॉलेज ऑफ पुरुषा, करेक्ट, एंड इसकी वजह से तीनों गुणों से, अब सभी गुणों से हम लोग मुक्त होने लगे। उसके बाद का सूत्र क्या है प्लीज? ये जो लेवल है ना, अभ्यास हुआ, परम वैराग्य भी हुआ। परम वैराग्य क्यों हुआ? परम वैराग्य इसलिए हुआ कि पुरुष ख्याति हुई। सो हमारा चित्त का लेवल क्या है? गड़बड़ है, क्योटिक है, कि शुद्ध 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 होने लगा? वितर्क विचार। Reach to the level of samadhi which is known as संप्रज्ञात समाधि। हम पुरुष के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। पुरुष क्या है उसकी ग्लिम्सेस हमें आने लगी है। हम पुरुष बन गए हैं क्या? नहीं। शादी कर ली है क्या? नहीं, अभी तो फोटो देखा है। करेक्ट, लेकिन फोटो देख करके प्यार में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? या तो एक एक कहीं दूर खड़ा था, कहीं ये कर रहा था, कहीं वो कर रहा था, ऐसे बाल उड़ाया वैसे बाल उड़ाया, हम लोग का वो प्यार जागने लगा। करेक्ट, that is what the glimpses of Purusha, glimpses of something. When the glimpses of that person comes, वो क्या होता है उसकी वजह से? रात दिन हम किसके बारे में सोचते हैं फिर? है ना, पहला पहला प्यार। करेक्ट, yes. So when you start connecting to Purusha, रात दिन, mostly whatever thoughts are there, if thoughts are there, they are the vrittis. If the thoughts are there, then these thoughts are about what? Pure consciousness. Pure consciousness. So that's why it is known as sampragnat samadhi. It is with prajna. It is with knowledge. It's not normal informative knowledge. इसलिए उसको ज्ञान शब्द नहीं डाला है। कौन सा डाला है? प्रज्ञा। प्रज्ञा is higher wisdom. Wisdom about higher principle or highest principle. Who is the highest principle? Pure consciousness. इसलिए उसके बारे में ज्ञान को सिर्फ ज्ञान नहीं कहते, हम प्रज्ञा कहते हैं। Got it? And so it is the संप्रज्ञात समाधि. So अभी थॉट्स है कि नहीं है? है, लेकिन किसके बारे में है? Pure के consciousness. बारे में है, प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में। सो ये जो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है वो हमें क्यों मिली है? पुरुष ख्याति। आगे के सूत्र में लिखा है ना, पुरुष ख्याति की वजह से गुण वैतृष्ण्य आया, एंड गुण वैतृष्ण्य आया, पुरुष ख्याति हुई, इसीलिए वी रीच टू संप्रज्ञात समाधि। एंड सो व्हाट इज दिस संप्रज्ञात समाधि? व्हाट इज दिस संप्रज्ञात समाधि? And so Rishi Patanjali explains
वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात समाधि। वितर्क मीन्स व्हाट? रीजनिंग। तर्क वितर्क करते हैं। हाँ, अभी हम वो लेवल में तो हम लोग ये वितर्क करेंगे पुरुष है भी कि नहीं है, ऐसा वितर्क होगा क्या? नहीं, हमने उसको देखा, सो वो है, सो वो वितर्क नहीं है कि नहीं है, वो कैसा है, क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है तो सच्चित आनंद अवस्था है, एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट? सो तर्क वितर्क हुआ, रीजनिंग हुआ। नहीं 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 नहीं, वो इंद्रिय नहीं हो सकता है, बराबर, क्योंकि इंद्रिय इज व्हाट? प्रकृति। प्योर कॉन्शियसनेस है, इसलिए सच्चिद आनंद है, वो प्रकृति से परे है। करेक्ट? त्रिगुणातीत है। सो ये वाला नो, व्हेन वी आर इन एक एक मिनट देखते रहते हैं किसी को, तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है ना, अच्छा है नहीं अच्छा है, कैसा है क्यों नहीं है, इसने ये किया होता तो। यस, दैट इज व्हाट इज राइट नाउ हैपनिंग व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू पुरुषा। एंड सो वी आर द फर्स्ट स्टेज इज वितर्क। वितर्क इज नॉट विशेष तर्क। वी शब्द, वी प्रीफिक्स जो है ना, वो हमेशा दो वे में, मेन टू वेज में यूज होता है, या तो नहीं, नॉट, या तो हायर, विशेष, स्पेशली। ओके, हम लोग कहते हैं ना विशेष पुरुष, तो शेष मीन्स बैलेंस, लेकिन ये विशेष मीन्स हायर बैलेंस, ऐसे करके। करेक्ट? एंड सो वी हैज दिस ऑलवेज, वी प्रीफिक्स हैज ऑलवेज टू मीनिंग। सो हियर नो तर्क कह सकते हैं? नहीं, तर्क तो है ही ना, वी आर थिंकिंग अबाउट प्योर कॉन्शियसनेस, सो इट इज स्पेशल तर्क, हायर तर्क, शुद्ध तर्क। व्हेन वी आर सी, शुद्ध कहते हैं तो विशुद्ध मीन्स बहुत बहुत प्योर। करेक्ट? एक्स्ट्रा। सो वी शब्द, वी लेटर, वी प्रीफिक्स इज ऑलवेज हैविंग दिस हायर मीनिंग। सो वी तर्क इज नॉट जस्ट तर्क। अगले क्या ऐसा थोड़ा होगा? नो, है, that is sure, but it must be much better. How clear? What is sat? What is chit? What is anand? वगैरह वगैरह के बारे में हम तर्क करते हैं. That's why it is known as vitarka, reasoning. And then vichara. What is vichara? In shavasana, conscious relaxation. Have you done yoga nidra? Once we have done, long back. बहुत टाइम हो गया, इस दफे कम हुआ है योगा निद्रा, बट समवेयर और द अदर यू हैव डन योगा निद्रा. मेरे को योगा निद्रा इसलिए याद आया कि दिस सैटरडे, कमिंग सैटरडे, मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा था ना कि देयर इज दिस कन्याकुमारी में कॉन्फ्रेंस है, करे, एंड स्वामी निरंजनानंद जी आ रहे थे. इस दफे मैं बिहार नहीं जा सकी, तो मैंने बोला ये रक्षा वेरी गुड वेरी गुड, तू जा, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ के पेपर भी भेजती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देन आई हैव रियलाइज कि 21 तारीख को यहाँ है, 28 तारीख को उधर है, मैं कहीं से भी लेक्चर नहीं ले सकूंगी, तो भाई जो तू काम कर रही है उसको तू वो नहीं कर सकती है, स्वामी जी को मिलेंगे. एंड मैंने सोचा कि भाई स्वामी जी यार, देखो मैं ये काम के लिए मैं ऐसे आलस नहीं कर रही हूँ, जरा देख लीजिएगा. एंड नेक्स्ट डे मैसेज आया that there will be symposium on yoga nidra at Bihar School of Yoga in November. So मैंने कहा हाँ, एटलीस्ट योगा निद्रा के सिंपोजियम में जा सकेंगे. वी ऑल नो राइट that yoga nidra is the special gift from Bihar School of Yoga, prasad from Bihar School of Yoga. The whole system of yoga nidra has been developed by them. Vipassana Jainism में जैसे हुआ है, हमारे योगा के हिसाब से बहुत सारी समाधि की अवस्था है, वो सब डिस्क्राइब किए हैं, मेडिटेटिव सिस्टम्स भी है, लेकिन योगा निद्रा का कंट्रीब्यूशन बिहार स्कूल का खुद का है. करेक्ट? एंड वी ऑल ऑल्सो नो दैट वो क्यों बनाई गई थी, how it got developed. Anybody? How it got developed? Swami Niranjananand ji came to ashram at the age of 4. 4 साल के थे तब उसको संन्यास, मतलब वो आश्रम में रहने के लिए आ गए, और वो मस्तीखोर भी थे, मतलब सब कुछ था, बच्चा. हाउ टू टीच दैट पर्सन? एंड उसको नॉर्मल स्कूल में भेज नहीं सकते, उसको सिर्फ अक्षर ज्ञान हो गया इसलिए बुला लिया. तब हाउ टू टीच ऑल द स्क्रिप्चर्स,
And Swami Satyanand Ji gave complete knowledge in Yoga Nidra. Swami Satyanand Ji used to put Swami Niranjananand Ji into deep sleep. वो सो जाते थे. उसके बाद में when the subconscious is working, at that time he used to give all this knowledge. He used to talk, he used to guide him, tell him, and so subconscious absorb all these things. So he has vritti of what? Vritti of all this knowledge only, right? That's why many times I have given example of Kartik versus Kartik. Now Kartik calling Kartik movie. मैंने पहले एक आध दो दफे दिया है. हैव यू सीन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी? हाँ. सो राजेंद्र भाई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी में, हाँ, एनीवे उसमें वेरी सिंपल है कि जो हीरो है उसमें तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का है. एंड फिर वो कहता है कि मुझसे ही कॉल आते हैं रोज सुबह 5 बजे या 5:30 बजे, जो भी है, रोज सुबह मुझे कॉल आता है और मेरी ही आवाज में मुझे सब कुछ कहता है. तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला, साइकियाट्रिस्ट बोले पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, खुद तू कैसे कॉल करेगा? तो बोले यू कम टू माई हाउस. एंड देन शी डिसाइडेड ऐसे ये कुछ भी बोलता है, लेट मी गो. एंड शी वेंट देयर एंड एक्चुअली इट हैज हैपेंड. एग्जैक्टली 5 बजे फोन बजता है, वो फोन उठाती है, स्पीकर पे रख करके वो दोनों सुनते हैं एंड वो उसको कहता है खुद ही खुद को, उसकी आवाज में पूरा आवाज आ रहा है, फोन आ रहा है. अभी ये कार्तिक कौन है दूसरा, कहां से आया, भूत है, क्या है, कैसे है? And then that they come to, please see the movie if you like all these things. And then it has turned out like this, that when he went to buy a phone, and at that time that phone वाला जो बंदा है, he was explaining him कि ये फोन के फीचर्स क्या है. When the person who was selling him the phone, वो बड़ा वाला फोन होता है ना हमारा घर का, वो वाला, at the time he was explaining कि ये फोन के फीचर्स क्या है. ऐसे होता है ना, इसमें ये कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं. कैन वी रिकॉर्ड इन आवर फोन, कैन वी पुट अलार्म इन योर फोन. सो ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट. सो वो सुन रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका पूरा फोकस था उसकी गर्लफ्रेंड जो शॉप के बाहर. सो ही वाज फुल्ली, सो हिज प्रैक्टिकल माइंड, हिज जागृत अवस्था, जागृत माइंड वाज बिजी विथ व्हाट? Jagrat mind was busy looking at the girlfriend, but his subconscious was absorbing all the information this man was telling. And so this man told him that in your phone, it's a special phone. This phone has feature that you can not only set the alarm, you can set the alarm in your own voice. कि रक्षा भाई उठ जा, कि आज थियोरी के 2 तेरे को क्लास करने हैं, तो ये कर ले. सो ऐसी 2 मिनट की, 1 मिनट की, आधे मिनट की, यू कैन पुट द इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो. हु लिसन? इज कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड कि अनकॉन्शियस? कॉन्शियस माइंड वॉज बिजी एंड सो सबकॉन्शियस एब्सॉर्ब. एंड सो रात को 2-3 बजे वो उठ करके अलार्म सेट करता था और उसमें पूरे दिन में उसके साथ जो हुआ है कि देखिए ये हुआ है ना तेरे साथ में, अगर तू ऐसा ऐसा करेगा ना तो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम. तो पूरे का पूरा वो वृत्तांत बताता था. इट यूज्ड टू सेट एज अ मॉर्निंग. तो सुबह 5 बजे बोलेगा वो, फिर वो पूरा सुनता था कि अरे कार्तिक तेरे को ये लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड चली जाती है, ये होता है वो होता है, तो यू डू दिस थिंग्स. Our subconscious is more powerful or not? Yeah, it not only absorbs something which is indirectly happening, but the clarity जो है ना, वो क्लैरिटी के साथ में उसको बताता था. उसने कहा कि भाई मेरा सब, मतलब मेरा वो जो कार्तिक जो भूत मेरे को फोन करता है, वो कितना समझदार है. वो समझदार, वो समझदार, his subconscious. And that subconscious was answering. Many a times हम बहुत थक गए, बहुत हार गए, सब कुछ करके बैठे या तो सो गए और उसके बाद में उठते यूरेका होता है. We get the answer. कहाँ से आया था? From the within, right? That is the power of subconscious. So can you change this subconscious or not?
ये सबकॉन्शियस के जो संकल्प है उसको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? हमारा जो सीपीयू है भ्रामरी के द्वारा उसको बदल सकते हैं कि नहीं? हमारे ब्रेन सेल्स को हम लोग, यस एग्जैक्टली लाइक दैट, with the help of yoga nidra. Yoga nidra is again a state of basic level of samadhi where you are working on your subconscious. जो वृत्तियां हार्मफुल है उसको निकालो, और जो हेल्पफुल वृत्तियां है, हार्मफुल वृत्तियों को हम क्या कहेंगे? क्या नाम दिया है ऋषि पतंजलि हार्मफुल वृत्तियों को? क्लिष्ट 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 वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्तियों को कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास अपनाने के लिए कुछ नहीं है तो हम निकाल सकते हैं क्या? इसके बिना कैसे जिएंगे? जैसा है ऐसा रहने देना। यू अंडरस्टैंड? हम जल्दी से, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वी कैन नॉट कम आउट ऑफ एनीथिंग इजीली। हम लोग कोई आदतें भी नहीं छोड़ सकते। यूजुअली आदतें हम लोग कैसे छोड़ते हैं? बहुत ज्यादा बुरी आदत है उसको हम थोड़ी अच्छी आदत के द्वारा चेंज करते हैं, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट। क्लिष्ट वृत्ति को हम अक्लिष्ट वृत्ति से हम बदलते हैं। सो सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, एट दैट टाइम योर सबकॉन्शियस इज वर्किंग हाईएस्ट। That time you put this thought, and so you are working on your subconscious. Your subconscious में से नेगेटिव वृत्ति या हार्मफुल वृत्ति को कम करके you put it. This is what the yoga nidra is, and that is what is संप्रज्ञात समाधि is. हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी थॉट्स को आने दे रहे हैं? हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स है रैंडम प्रकृति के बारे में? नो, we have only selected thoughts about pure consciousness, aklishta vritti, and that is what is vichara. श्रवणम मननम निधिध्यासनम हमने सुना है। हाँ, श्रवणम मतलब हम किसके बारे में सुनते हैं? ये कैसा है, वो कैसा है, वो गॉसिप इज श्रवणम? नो, श्रवणम इज ऑलवेज व्हाट? श्रुति ने हमें जो बताया है, वेदों ने हमें जो बताया, किसके बारे में बताया? मैं क्या हूं, आई एम प्योर कॉन्शियस, या तो ब्रह्मन, करेक्ट, उसके बारे में। सो वो जो मैंने सुना है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? मनन। व्हाट इज मनन? मनन। हाँ, मनन करते हैं। मतलब व्हाट इज मनन? मनन कैसे करते हैं? सोचते हैं, डीप सोच थॉट। के चिंतन करके। हाँ, सोचते हैं, चिंतन। चिंतन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, राइट? व्हाट इज विचारा? विचार इज रिफ्लेक्शंस, डेलिबरेशंस, thinking about again and again in detail. That is what is vichara. So who is purusha? Purusha कैसा है? ऊंचा है, चौड़ा है, लंबा है? Can it be purusha? Can we measure the purusha? Height, weight वगैरह? अगर height, weight वगैरह आता है तो it is प्रकृति, उसमें गुण है। ये गुण के बिना का है तो कैसा है? Yes, there is some kind of understanding. Yes, that is what the vichara is. So we are in a thinking stage. We are engrossed in thinking, in manana, vichara. And that stage is known as vichara sampragyata samadhi. So sampragyata samadhi is first is vitarka. Vitarka मतलब विशेष तर्क about purusha. Then second stage of sampragyata samadhi is, second stage is vichara sampragyata samadhi. We are deliberating, we are continuously reflecting upon the idea of pure consciousness, purusha. And then पुरुष क्या है, कैसा है? यू नो आपका हमारा जो भी पसंदीदा जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में सोचते हैं तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं क्या? No, look at the face of the people who are in love with, right? है ना शीतल? वो उनके फेस में वो एक ग्लो होता है, हम लोग कहते हैं ना, करेक्ट? What is that? That happiness. It is just normal happiness? No. That is what is Ananda, bliss. Ananda Hona shows what? Ananda Hona shows that, we are in connection with the pure consciousness. बहुत सारे लोगों को लगता है, कभी कोई, हम लोग को भी लगता है, जैसे आज बहुत मजा आई ये आसन करने में, आज बहुत मजा आई ये प्राणायाम करने में, क्या मजा आई? कोई बोले क्वांटिफाई इट। कैन वी क्वांटिफाई इट? कैन वी एवर क्वांटिफाई? हाँ, क्या क्या सोचा तुमने? कैन वी से क्या सोचा था उस वक्त? क्या विचार था?
विचार था, लेकिन क्या था मालूम है? हम लोग कैन वी पिन पॉइंट इट? वी कैन नॉट. दैट लेवल इज आनंद संप्रज्ञात समाधि, blissful state of thinking which helps me to get engrossed into that level, and that's why it is known as samadhi, but with a thought. And this thought is about pure consciousness, which is now no more tarka vitarka. कैसा है, क्या है, वो है, मेरे साथ है, या मैं वो हूं, something like that. No, you are just happy about it, blissful about it, and that is known as Ananda Sampragyata Samadhi. And the last one is Asmita Sampragyata Samadhi. What is Asmita? What is Asmita? आइनेस क्लेशों में से एक है, राइट? हाँ, बोलो बोलो अमिता, पहले बोल लो आप. हाँ आइनेस हाँ, हम लोग के अस्मिता के एकदम शॉर्ट ट्रांसलेशन में से आइनेस. ओके, इन जनरल हु एम आई? In general, who am I? In general, do we say I'm Brahmasmi? In general, whenever we are saying who am I? I मैं am रक्षा. Body inside रक्षा consciousness. किसका नाम है? Body, मेरे आत्मा का नाम रक्षा है क्या? body consciousness. Pure Correct? consciousness. हाँ, yes, yes. So, am I pure consciousness? Generally, हम लोग generally बोलते हैं कि मैं ये, मैं वो नहीं. करेक्ट? इसीलिए सी हु एम आई एक्चुअली, दैट आई सेंस किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? आत्मा के साथ, राइट? यू नो, कल ही, क्योंकि ना मैंने आप लोगों को भी वो एग्जांपल दिया ही होगा 100% कि नया नया मैं भारतीय विद्या भवन गई थी बहुत साल पहले. कल भारतीय विद्या भवन ने ऑर्गेनाइज किया था ना ये प्रोग्राम. तो बहुत साल पहले हमारे यहाँ मुंबई पे चौपाटी के पास भारतीय विद्या भवन है, तो वहां पे मैं संस्कृत क्लास में गई थी. संडे संडे 12 बजे का क्लास होता था, एंड हम भाग भाग के पाठशाला से भाग के, तो पाठशाला में बचपन से जाती थी तो वो सब सीखना होता था. एनीवे, तो हम लोगों को बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, बट संस्कृत में. सो अहम रक्षा अस्मि, अहम टीचर, अहम शिक्षिका अस्मि. ओके, अहम अस्मि होता है, करेक्ट? तो मेरे को यार, अरे वाह यूरेका, मैं तो सब लोग से ज्यादा जानती हूँ, एमबीए हूँ. तो मेरा टर्न है ऐसे एकदम. और हमें हमें बोलना होता है तो हम लोग आजू बाजू का कोई को सुनते नहीं है, राइट? फिर भी कि मेरा टर्न आएगा ना, मैं बोलूंगी, मेरे टीचर एकदम खुश हो जाएंगे. जैसे ही मेरा टर्न आया तो मैंने बोला, मैं खड़ी हुई ऐसे स्मार्टली बोला अहम ब्रह्मास्मि. टीचर बोले कि आर यू कनेक्टिंग टू अहम ब्रह्मास्मि? अहम ब्रह्म, लेकिन गलत नहीं है, राइट? अहम ब्रह्म अस्मि, हूँ ब्रह्म छु, मैं ब्रह्मन हूँ. वैसे हम बोलते हैं अहम रक्षा अस्मि, अहम मैं रक्षा हूँ, अहम शिक्षिका अस्मि, सो मैं शिक्षिका टीचर हूँ. तो मैंने वो कहा, आर वी ऑल कनेक्टिंग टू दिस? अहम मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस. सिंपल एग्जाम्पल. सो कल कल मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, तो मैं मेरे फ्रेंड को, फिर मेरे को बताना होता है ना, जैसे आप लोगों को भी बताया, तो मैं मेरे फ्रेंड से कहा, तो बोले कि ये तेरा है ना कंफ्यूजन है, यू नो, हाउ कैन वी कनेक्ट टू प्योर कॉन्शियसनेस? और यू नो, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग बॉडी से नहीं कनेक्ट करते हैं, हम लोग आत्मा से कनेक्ट. मैंने कहा कि जनरली जो भी हम लोग ने सबने देखा है, हमारे घर में कहीं और पे भी कोई गुजर जाता है तो ऐसे कहते हैं कि अभी यू नो, हाँ, जैसे ही कोई गुजर जाता है फिर उसका अग्नि संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? रक्षा को अग्नि संस्कार करने लेके जा रहे हैं, चलो चलो चलो. बोलते क्या है? Body. तुरंत ही 5 मिनट के बाद, 5 मिनट भी नहीं, करेक्ट, दूसरी सेकंड में, करेक्ट. सो व्हेन आई से आई इज व्हाट? बॉडी नहीं, मेरा जो रक्षात्व है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? मेरे प्योर कॉन्शियसनेस की वजह से. सो हु एम आई एक्चुअली? उसका ग्लिम्सिस कि मैं, सी अभी क्या था उसके बारे में विचार था, वितर्क था, विचार था, और उसमें मुझे आनंद आने लगा. एंड नाउ आई एम कनेक्टिंग टू प्योर कॉन्शियसनेस. अस्मिता मतलब आईनेस जो है, वो हु एम आई, दैट आई इज दिस प्योर कॉन्शियस, दैट कनेक्शन इज हैपनिंग, स्टार्टेड हैपनिंग. ठीक है, सिर्फ प्यार नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं, आई एम बिकमिंग दैट थोड़ा थोड़ा.
बहुत एकदम दृढ़ प्यार होता है तो हम उसके जैसा बनने लगते हैं कि नहीं? हम उसके जैसा बनने लगते हैं, उसकी पसंद मेरी पसंद बनने लगती है ना। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, उसके हस्बैंड के जैसे उनकी सिग्नेचर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जैसा उसका स्वभाव बनने लगता है, उसके जैसा खाना, उसके जैसे पहनना, उसकी तरह उस जगह पे घूमने जाना वगैरह वगैरह। सो योर थिंकिंग पैटर्न, योर वृत्ति स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक दैट। देन ओनली, अगर दोनों सेम सेम है तभी जा करके तो वो क्या होता है, मर्जिंग होता है। नहीं तो दोनों एकदम अलग अलग होता है तो वो मर्जिंग नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? तो हम उसके एक दूसरे के जैसे बनने लगते हैं। एंड सो दैट इज व्हाट इज, हाँ, सो अस्मिता इज दैट आईनेस, वी स्टार्ट बिकमिंग like pure consciousness, we start becoming pure consciousness. How? कि हमारा गुणा वगैरह चला गया है, limitations coming out, and we are realizing I am the pure consciousness, I am the pure consciousness, I start surely connecting to the self within me, and that level is known as asmita sampragyat samadhi. So संप्रज्ञात समाधि के कितने लेवल ऋषि पतंजलि ने दिए हैं? एंड क्यों 4 ही दिए, 50 55 क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि फर्स्ट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो तर्क वितर्क, दैट तर्क वितर्क बिकम दृढ़, द थिंकिंग, द मनन चिंतन हैपेंस, एंड दैट चिंतन बिकम्स वन थरो। वी स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, and when we start enjoying that, we realize we are one with that. That oneness is asmita. And that's why what is the Sutra Rishi Patanjali says, what is Sampragyata Samadhi? Sampragyata Samadhi is of 4 types. Sampragyata Samadhi is that Samadhi which comes because of, comes after, comes through Anugamat. Anugamat means what? Comes after, comes because of, comes through. The Sampragyata Samadhi is that Samadhi which comes through Vitarka or Vichara और आनंद और अस्मिता. Got it? What is the whole sutra is? वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात. So संप्रज्ञात samadhi is that samadhi which is coming through vitarka or through vichara or through ananda or through asmita. What is संप्रज्ञात samadhi? वितर्क अनुगमात संप्रज्ञात और विचार अनुगमात इज ऑल्सो संप्रज्ञात और आनंद अनुगमात इज ऑल्सो संप्रज्ञात और अस्मिता अनुगमात, अस्मिता के द्वारा आई हुई समाधि को भी हम संप्रज्ञात कहते हैं. वितर्क से आई हुई समाधि, वितर्क की वजह से फॉलो जो होता है, वितर्क की वजह से जो आती है वो समाधि को भी हम संप्रज्ञात कहते हैं. विचार की वजह से, नाउ वी ऑल नो वितर्क मतलब क्या, विचार मतलब क्या, आनंद मतलब क्या और अस्मिता मतलब क्या. या तो वितर्क, या तो विचार, या तो आनंद, या तो अस्मिता की वजह से. अस्मिता मीन्स वननेस विथ प्योर कॉन्शियसनेस. इसकी वजह से आई हुई समाधि को, या तो हम वो समाधि लेवल पे पहुंचे हैं, वो समाधि अवस्था को हम एकदम निर्विजय समाधि कह सकते हैं, नो थॉट समाधि कह सकते हैं. नो थॉट है, करेक्ट. इसीलिए उसको विथ थॉट, विथ प्रज्ञा समाधि कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि. अभी बॉस ये अच्छा वाला स्टेज है, राइट. एवे एरा गेरा नथुकेरा थोड़ा है, करेक्ट करेक्ट. हमारा चित्त कितना अच्छा हुआ है कि क्लिष्ट वृत्तियां नहीं है, अक्लिष्ट है. और उसमें भी किसके बारे में थिंकिंग है, किसके बारे में थॉट्स है, प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में थॉट है. तो हमारे चित्त में कोई असर हुई है कि नहीं हुई है? हमारा असर अच्छा, हमारा चित्त थोड़ा अच्छा बना है कि नहीं बना है? हाँ बना है. एंड दैट इज व्हाट ऋषि पतंजलि इज टॉकिंग अबाउट, द डिफरेंट स्टेजेस. एंड सो हम जब ये स्टेज पे पहुंचते हैं, ये सबीज है कि निर्बीज है? सबीज. वेरी नाइस, सबीज. आई एम वेरी हैप्पी. सबीज है. तो अगर ये संप्रज्ञात है तो कोई असंप्रज्ञात वाला समाधि होगा कि नहीं होगा? होगा होगा. हाँ, ये लेवल से भी हायर लेवल का समाधि होगा, तभी जाकर के नो थॉट, निर्बीज, निर्विचार समाधि पे जाएंगे. हाँ, ये संप्रज्ञात विथ प्रज्ञा है, तो विचार है कि नहीं है इसमें? है ना, विचार है ना. तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सबीज सबीज सविचार संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि. समाधि.
वो बीज भी है क्योंकि विचार है, इसलिए सविचार समाधि भी है, प्रज्ञा भी है, थिंकिंग वगैरह भी है, इसलिए इट इज संप्रज्ञात समाधि। तो अगर विचारों के साथ की समाधि है तो विचारों के बिना की समाधि भी होनी चाहिए कि नहीं? अगर प्रज्ञा के साथ में समाधि है तो प्रज्ञा बिना की समाधि कैसी होगी? ऋषि पतंजलि को मेरे को नहीं मालूम है, ऐसा कह सकते हैं क्या कभी ऋषि पतंजलि? कैसे आके तुम लोग ढूंढ लेना, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं ना। इसलिए ऋषि पतंजलि ने नेक्स्ट सूत्र में कहा है अधर विराम। समाधि। अधर समाधि मतलब कौन सी समाधि हुई? ये पहली वाली कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। अधर, अधर, अन्य, अन्य। अन्य। व्हाट इज The द other सेकंड one. सूत्र ऑफ दिस? विराम विराम प्रत्यय विराम अभ्यास पूर्व प्रत्यय अभ्यास पूर्व अभ्यास पूर्व संस्कार संस्कार शेषो शेष अन्य। अन्य। तो अन्य दूसरी, दूसरी मतलब कौन सी? संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात। हाँ, इसीलिए असंप्रज्ञात समाधि कौन सी है? असंप्रज्ञात समाधि हम उसको कहेंगे। अगर असंप्रज्ञात नो प्रज्ञा समाधि है तो वो कैसे आएगी? संप्रज्ञात समाधि में थॉट है, हाँ या ना? यस, थॉट है, थॉट है, हाँ हाँ, उसमें थॉट है, विचार है, वितर्क है, आनंद है। विचार तो है। असंप्रज्ञात में थॉट होने चाहिए क्या? नहीं, नो थॉट, नो गॉट थॉट। इट? सी इट इज, वी ओनली आर अंडरस्टैंडिंग इट नो थॉट वाला। तो नो थॉट की शुरुआत है ना वहां से होती है। थॉट मतलब क्या? हमारे उसमें थॉट विचार। आते क्यों है? किसकी वजह से? या तो अविद्या की वजह से। और वो अविद्या क्यों है? संस्कार की वजह से। यू अंडरस्टैंड? हु इज द बीज ऑफ ऑल? सारे प्रॉब्लम की जड़ कौन है? संस्कार। जन्म दर जन्म हमारे पास आते हैं, राइट? करेक्ट। अविद्या। एक जन्म से दूसरे जन्म में कौन आता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। कौन से फॉर्म में आते हैं? कौन से संस्कार। फॉर्म में आते हैं? संस्कार संस्कार, के फॉर्म में संस्कार। आते हैं, राइट? हाँ, सो ऋषि पतंजलि से के अभ्यास पूर्वक, व्हाट इज अभ्यास? दीर्घ काल निरंतर सत्कार्य आसेवितों के साथ में स्थित यत्न करने से, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास पूर्वक, विथ द हेल्प ऑफ अभ्यास, विराम प्रत्यय। प्रत्यय, विराम मतलब क्या? विराम स्थल। विराम मतलब क्या? रुकना, स्टॉप, लास्ट डेस्टिनेशन। आराम से भी हायर आराम, राइट? हम एकदम विराम स्थान, हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई गुजर जाता है तो बोले विराम पामे, विराम, करेक्ट? हाँ, ऐसे लगते हैं। विराम मतलब व्हाट? हाईएस्ट आराम। नाउ नो मोर वर्क, नथिंग डूइंग, यू रीच्ड। ओके, सो विराम मतलब कंप्लीट स्टॉपेज। विराम किस चीज का? प्रत्यय। व्हाट इज प्रत्यय? प्रत्यय इज ऑल दैट थिंग्स, कहां गया मेरा? ऑल दैट थॉट प्रोसेसेस या ऑब्जेक्ट्स, या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मेरे दिमाग में इसके बारे में विचारे, उसके बारे में विचारे, तो कैन वी कॉल इट कंटेंट ऑफ थॉट्स? कंटेंट ऑफ माई माइंड, सॉरी, ऑल माई थॉट्स आर व्हाट? My mind, my chitta is the container of a thoughts. Correct? Correct. So thoughts are Yes. what? Content, right? Content. वस्तु है, या Content, content. correct. हाँ, so what is प्रत्यय? मेरे दिमाग में जितने भी विचार है उसको हम प्रत्यय कह सकते हैं। करेक्ट? So प्रत्यय is known as content of mind. प्रज्ञा में कंटेंट ऑफ माइंड था, संप्रज्ञात समाधि में कोई ना कोई विचार थे, हाँ या ना? हाँ, हाँ, लेकिन ये कौन सा कंटेंट था? खराब वाला कंटेंट, मतलब प्रकृति के लिए कंटेंट था कि पुरुष के लिए पुरुष के लिए, कंटेंट था? पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। तो उसको संप्रज्ञात कहा। अभी कहा। असंप्रज्ञात है तो पुरुष के बारे में भी थॉट प्रोसेस स्टॉप। चला गया। गॉट इट? एंड सो विराम प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय है, प्रकृति के बारे में तो पहले ही बंद किया था, अभी पुरुष के बारे में भी जो थॉट है ना, उसको विराम दे दिया। विराम दे दिया मतलब कंप्लीट स्टॉपेज आ गया, तो उसको कहेंगे विराम प्रत्यय। कैसे आया? एम आ जाएगा क्या? अभ्यास। विथ प्रयत्न। सी, बुरे विचारों को हमने अच्छे विचारों के द्वारा रोका, लेकिन अभी अच्छे विचारों को कैसे रोकेंगे बॉस? वो सामान्य है क्या? वो इजी है क्या? नो थॉट। हम लोग कब
थॉटलेस अवस्था में पहुंच सकते हैं? हाँ, No thought. कंप्लीटली एनग्रॉस्ड। हाँ, some उसमें क्या था? वितर्क से हायर विचार से आनंदन अस्मिता, मैं कौन हूं उसके ग्लिम्सेस मिल रही थी संप्रज्ञात में। मैं प्योर कॉन्शियसनेस, व्हेन यू बिकम प्योर कॉन्शियसनेस, इज देयर एनीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट? No. व्हेन यू बिकम शक्कर, आर यू थिंकिंग अबाउट शक्कर कैसी है कैसी नहीं है? यस। यू हैव हर्ड अबाउट सॉल्ट डॉल, नमक की गुड़िया। नमक की गुड़िया को लग रहा था कि भाई ये समंदर, सब लोग ने बोला खा रहा है, तो बोले कि कैसा खा रहा है, मुझे चखना है। तो गुड़िया गई, सॉल्ट की गुड़िया, सागर को चखने के लिए। सागर को। एंड व्हेन शी एंटर्ड द ओशन, व्हाट हैपेंड? Willing हो गई। टेस्ट सागर। हाँ, टेस्टिंग सागर is different, like we all do it. But here what has happened? She became He ocean. became Sagar. Sampragyata Samadhi, thought about pure consciousness was there. We are trying to connect, Asmita, मतलब we are trying to connect to pure consciousness. Asampragyat में क्या है? You are not trying, you are not thinking. You have become pure consciousness. Pure consciousness कितने हैं? Only one. हाँ? One and only one. Ah, you become that. So when you have become sugar, when you have become ocean, then are you thinking about ocean? You are ocean. That level, you are pure consciousness, is known as asampragyata samadhi. जब उसके बारे में विचार नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में विचार? क्योंकि मैं अलग हूं ही नहीं कि उसके बारे में विचार करूं. I have become that. What Rajrishi has talked about, when meditator is not there. Why? Because meditator and the object of meditation becomes one. Ekakarta is known as asampragyata samadhi. The anya samadhi. Anya samadhi means what? Rishi Patanjali has not named it, because he does not want to name anything, but we have, for our understanding purpose, that sampragyata is with thought. Here no thought. Why no thought? Because we ourselves become the pure consciousness. That level of samadhi, no thought at all, that samadhi is known as asampragyata samadhi. But at this level, we are, is it the permanent? We reach there and then come back, correct? We reach there and come back. So that's why it is known as sampragyat and asampragyat samadhi. Rishi Patanjali says it is anya samadhi. He is not saying it is the highest samadhi, right? Correct? And so it is anya samadhi. और ये जो अन्य समाधि है ना, ये इसमें है ना भव प्रत्यय. जो लोग है ना लास्ट बर्थ में ये सब प्रयत्न किया है, ये लेवल पे पहुंचे हैं. फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस, हम लोग ने सिद्धि में जिनकी बात की थी, वो बचपन से they have the glimpses of being one. धारणा ध्यान समाधि वो बचपन से कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि भव प्रत्यय जो लेवल है, या तो विदेह प्रकृति जना है, they have already come out of most of the karmas, most of the sanskaras. Only few means कौन से वाले? Yes, पुरुष के साथ जुड़ने वाले संस्कार रहे. रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, उन लोगों को कोई भी चीज से कोई फर्क पड़ता था क्या? दिया नहीं दिया, लिया नहीं. रमण महर्षि भी नो, राइट? वो बचपन में जब भी वो निकले, सो ही वाज फाउंड बाय पीपल. एकदम पुराना जंगल में रहे हुए मंदिर में वो बैठे थे, पद्मासन लगा करके ध्यान अवस्था में, और चूहे वगैरह आकर के, क्योंकि उसमें पानी चढ़ाते रहते लोग, दूध चढ़ाते रहते. खैर, जहां पे भी हमें शिवलिंग दिखता है हम लोग वो करते, तो आजू बाजू में कौन हो गए थे? चूहे हो गए थे. तो चूहे ने उनका पैर काट लिया था, रोइलुआन हुआ था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? Because he was connected to what? Pure consciousness. उनको देह के साथ कोई फर्क ही नहीं था. वो लोग बोलते थे कि हमें कोई दुख नहीं हो रहा है ये बॉडी से. उन लोगों को भूख नहीं, खाते हैं हम अगर देते हैं तो, लेकिन वो नहीं बोलते कि मुझे खाना है या करना है. Why? Because they have pare, gone beyond this. Rishi Patanjali says this is the anyas.
दे व्हेन देयर इज नो संस्कार, संस्कार शेष अन्य, बाकी कोई भी संस्कार बाकी नहीं रहा, कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी विचार, कुछ भी बाकी नहीं रहे। वो जो लेवल है दैट स्टार्ट्स, दैट लेवल इज नोन एज असंप्रज्ञात समाधि। करेक्ट। और वहां पे जो शेष संस्कार है, मैंने क्यों नहीं कहा, या तो ऋषि पतंजलि ने क्यों नहीं कहा कि ये हाईएस्ट है, क्योंकि क्या है, बाकी अन्य संस्कार नहीं है, लेकिन कौन सा संसार है, संस्कार बचा है, पुरुष के बारे में संस्कार बचा है ना, यू नॉट रियलाइज्ड यट। हाँ, सो मतलब कैसे, हम वो कौन से लेवल पे है हम अभी, वो पुराने जमाने में हम लोग ये करते थे, हमारे पास फोटो होते थे, फिर हम लोग है ना उसकी बहुत सारी कॉपी करा करके रखते थे। Negatives. फिर बड़ा थोड़े सालों के बाद में बोलेंगे कि हमें कॉपी, हम लोग नेगेटिव को फेंक देते थे क्या? नहीं, क्यों नहीं फेंकते थे? क्यों नहीं फेंकते उसके थे? और उसके और कॉपीज बना सकते हैं, इसके अगर जरूरत पड़े तो वी कैन गेट इट। कॉपीज बना सकते सो नेगेटिव में वो फोटो है क्या? एग्जैक्टली वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी है। इट इज इन व्हाट फॉर्म? इट इज इन बीज फॉर्म, कि वी हैं। कैन डेवलप द पॉजिटिव आउट ऑफ इट। करेक्ट। हमारे संस्कार ऐसे पड़े हैं नेगेटिव की तरह, इट इज जस्ट नेगेटिव, इट इज नॉट एक्चुअली देयर, बट इट इज देयर इन पोटेंशियल फॉर्म। अगर जरूरत पड़ी, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, वो नेगेटिव को उसमें डाला और वो अलग अलग पानी में डाला वगैरह वगैरह किया, तो फिर यू कैन गेट दैट प्रिंट। करेक्ट। हाँ, सो हमारे सारे संस्कार निकाल दिए, ऐसे 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 फेंक दिए उसमें से, कि है वहां पे, है। है, लेकिन कैसे है अभी, हम करने वाले नहीं, अभी कौन से फॉर्म में है? नहीं, एकदम सीड फॉर्म में रहे। बीज अगर उसको पानी मिला, सूर्य प्रकाश मिला, तो क्या हुआ? फलेगा, डेवलप फिर होगा। से हाँ, फॉर एग्जाम्पल भरत मुनि, जड़ वो बना। एकदम मुनि कहते हैं ना हम उनको, वो एकदम हायर लेवल पे सारा राज्य सब कुछ छोड़ करके जंगल में एकदम अपनी साधना कर रहे थे, सब कुछ छूट यस, गया था, सब कुछ छूट गया था। हाँ, तो बियर्ड देर वॉज एनी संस्कार, संस्कार वर देर एट व्हाट लेवल? ये लेवल, बीज एकदम बीज मात्रा लेवल पे। और फिर वो कौन आया? हिरन आया, हिरन उसके अंदर का डियर। प्यार मोहब्बत जाग उठा। डेवलप। करेक्ट। एंड सो अटैचमेंट बढ़ा कि अरे अरे इसके बिना उसका मेरे बिना कोई नहीं है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो उसका क्या होगा, अरे वो क्या खाएगा, जंगल में चला गया है, समझता नहीं है मेरे बिना उसका क्या होगा। और वो थॉट की वजह से ही हैड टू टेक अनदर बर्थ। यू अंडरस्टैंड? ये संस्कार एकदम कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें को अगर पानी मिलता है, अगर सूर्य प्रकाश मिलता है, तो कभी कभी कहीं से भी, कहीं पे भी वो पनप सकता है क्या? बहुत सारे बीज पत्थरों पे ऐसे कोने में घुस गया है और वहां पे पानी आया, तो वहां से पत्थर के नीचे से ऐसे ऐसे मुझसे निकलेगा। यस, इट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ बीज। इसलिए ये निर्बीज नहीं है, अभी भी सबीज है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, वो संस्कार है, अगर ध्यान नहीं रखा तो उसको हम लोग, वो लोगों को योग भ्रष्ट लोग कहते हैं। वही लोग कौन है? ये प्रकृति लया या तो विदेह जना, कि एक दफे वो लेवल पे पहुंच गए, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी रह गया, एंड सो दे टेक द बर्थ। एंड अभी रमन महर्षि ने क्या किया, या तो विवेकानंद ने क्या किया, वो जो दो चार सद इच्छाएं या जो भी काम करना बाकी था, उन लोग ने वो किया, नए नए बहुत सारे कर्म किए, क्या कर्म किए, वो बहुत सारे नए और कर्म फल इकट्ठा किया क्या? नहीं। एंड सो रमन महर्षि वेंट आफ्टर दिस वर्ल्ड इज फ्री बर्ड। रामकृष्ण परमहंस, उन लोग का फिर वापस जन्म होने का चांस? नो चांस। राइट? व्हाई? बिकॉज दे हैव रीच्ड टू दैट। हाँ, सो ऋषि पतंजलि सेज दैट असंप्रज्ञात समाधि इज दैट अन्य समाधि विच वी रीच। बाकी के जो जो भी अदरवाइज के संस्कार है, उसको प्रयत्न पूर्वक हम लोग ने विराम दे दिया। विराम दे दिया मतलब वो वहीं पे आराम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो कभी फ्यूचर में बढ़ सकते हैं।
करेक्ट। एंड सो संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात समाधि यूजुअली बोलते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि वो अभी भी सबीज समाधि है। क्यों? क्योंकि संस्कार का बीज अभी भी है, उसको हम लोग ने कंप्लीटली खत्म नहीं किया है। उसको कैसे खत्म करने का ना ऋषि पतंजलि ने कैवल्यपाद में कहा। ही मेंशंस दैट, आई नो हम बहुत सारी लेडीज है और जेंट्स लोगों को भी मालूम है, हम लोग सब स्प्राउट खाते हैं, राइट? स्प्राउट्स, खाते खाते। हाँ। और जो लोग तो वो स्प्राउट्स अगर हम लोग ने हम लोग तो महीने भर का 2-3 महीने का सामान मंगा लेते, पहले तो 6-6 महीने का मंगाते थे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर यूज नहीं किया है, मूंग है या कुछ भी है, अगर यूज नहीं किया है तो वो क्या होने लगता है, उसमें कीड़े कीड़े पड़ पाउडर जाते हैं। कीड़े लगने लगते हैं। तो हम लोग क्या करके रख देते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा उसको रोस्ट करके रखते हैं। अगर हाँ, रोस्ट करके रख दिया है और उसको फिर स्प्राउट करना है, वो स्प्राउट होगा? नहीं नहीं, स्प्राउट नहीं होगा। अगर रोस्ट कर लिया तो उसकी पोटेंशियलिटी टू कम अप, पोटेंशियलिटी टू फर्टाइल, पोटेंशियलिटी टू स्प्राउट विल स्टॉप। ऋषि पतंजलि से इस कैवल्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा ये जो संस्कार है ना, जो नेगेटिव रूप में पड़ा है, जो कभी भी पॉजिटिव बन सकता है, उसको अगर दोष बीज जो है हमारा, उसको हम लोग जैसे ही हैज गिवन दिस एग्जांपल कि जैसे हम लोग बाकी के बीज को रोस्ट कर लेते हैं तो वो फिर स्प्राउट नहीं होते, वैसे हमारे संस्कार को हम लोग रोस्ट कर देंगे तो वो कभी भी स्प्राउट नहीं होंगे। नो मोर बर्थ, एंड दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन कैवल्य, क्योंकि उसके बाद में कोई बर्थ नहीं है। Till then, chances of birth are there. Till then, chances of falling down is there or not? Correct? Yes. भगवत गीता possible. में भी और हमारे उसमें भी उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट मतलब क्या? योगत्व तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंचे थे, लेकिन वो 99 वाला आ गया और वो नीचे आए एक दो चीज की वजह से, एक दो वीकनेस की वजह से। जैसे हरण का है, बहुत सारे हमारे उसमें पुराणों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि उन्होंने ये कारण की वजह से उनको जन्म लेना पड़ा, फिर वो लोग मौन रहे, बाकी सब में फंसे ही नहीं, वो खत्म किया, बाय बाय टाटा सी यू, नेवर सी यू, नॉट सी यू, नेवर सी यू। करेक्ट? यस, हाँ। सो ऋषि पतंजलि से यू कैन रीच टू दिस, एंड सो ऋषि पतंजलि सेज दैट यू नो दिस भव प्रत्यय वगैरह ये ऐसे करते हैं। सो जो भव प्रत्यय या तो विदेह प्रकृति जन है, जो लोग बहुत मेहनत करके ये अवस्था तक पहुंचे थे, तो जैसे ही वो लोग नया बर्थ लेते हैं तो दे स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम दैट। व्हाट अबाउट अस? हम लोग कभी भी ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात तक पहुंचेंगे क्या? हम लोग कैसे पहुंचेंगे? धीरे ऋषि पतंजलि कहते हैं कि इतर, बाकी के सारे लोग हमारे जैसे, बाकी के लोग, योगियों की बात अलग है, वो लोग तो जैसे जन्मे क्योंकि उन्होंने अगले जन्मों में प्रयत्न किया था, वो लोग दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम हियर। लेकिन हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? इतर जना, बाकी के लोग, इतर जना, इतर ये शाम जो लिखा है ना, सो द अदर हाँ, पीपल, इतने हाउ वी शाम। डू इट, हाउ वी रीच टू दिस? श्रद्धा वीर्य स्मृति। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति एंड समाधि पूर्वक, समाधि प्रज्ञा पूर्वक, समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रज्ञा के साथ हम समाधि अवस्था पे कैसे पहुंचेंगे? श्रद्धा एंड वीर्य के साथ। श्रद्धा मीन्स व्हाट? फेथ, कंप्लीट फेथ के यस आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। कुछ भी मोहरा को कोई बोले, तेरे में अक्ल नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू ऐसी है, तू ऐसे, कुछ भी कोई बोले, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। यस, हैविंग, सी आई मीन कोई और बोले ना बोले, हमें खुद पे भी भरोसा है कि मैं पूर्ण हूं। I'm talking, मैं कितनी दफे मैं दम्बो रक्षा, I say, how can you know, yesterday only I was saying, how can you say this, how can you believe this? कितनी दफे तेरे को खुद को समझाने का कि you are not supposed to talk more, keep quiet। मैं अपने आप को बोल रही थी, कितनी स्टूपिड है तू। करेक्ट? अपने आप ही हम बहुत दफे अपने आप को वो नीचा करते हैं। ऋषि पतंजलि सेज दैट फेथ के साथ, कम वॉट में, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं पूर्ण हूं, ये श्रद्धा, और ये मैं पूर्ण हूं वो वीर्य के साथ, स्ट्रेंथ के साथ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वीर्य मीन्स स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, राइट? वीर्यवान मतलब कौन? इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियलिटी अबाउट व्हाट ही इज, व्हाट शी इज, व्हाट वी आर
अमृतस्य पुत्रः वयम, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, अवर डिवाइन सेल्फ, राइट, ये वी आर। सो उसके ऊपर श्रद्धा एंड वीर्य के साथ में हम लोग वी कैन गो हायर, राइट। एंड सो अगर कोई बंदा स्लो स्लो जाता है, तीव्र फास्ट ट्रेन लिया है तो जल्दी जल्दी पहुंचेगा, स्लो ट्रेन लिया है तो धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर, करेक्ट। एंड देन ऋषि पतंजलि से कोई मृदु है, कोई मध्यम गति से जा रहा है, या तो कोई तेज गति से जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट दे रीच द लेवल ऑफ समाधि, दे रीच द लेवल ऑफ व्हाट, सिद्धि ऑफ समाधि, कैवल्य। Does that mean everybody reached the highest state? Yes? Yes. Correct. कोई जल्दी पहुंचता है, हम तो पहुंचता है। कोई Correct? जल्दी नहीं पहुंचता। Yeah. One day we all will also be one day we all will also be Ramana Maharshi, Ramakrishna Paramahansa, Shankaracharya. Am I right? We may not be right now. लेकिन yeah, so our aim is that. And then when we reach there, then in the एक बर्थ में yes पहुंच गए अपने, वो लाइन हमें दिख रही है, अरे हाँ बस क्रॉस किया और पहुंच गए, करेक्ट। यस, सो ऋषि पतंजलि सेज वी रीच टू दिस। ये वाले जो भी रिजल्ट दिए ऋषि पतंजलि ने, वो किसके बाद दिए, क्या प्रयत्न करने के बाद आएंगे? ये संप्रज्ञात समाधि, अभ्यास एंड वैराग्य, हाँ, अभ्यास एंड वैराग्य, अभ्यास एंड वैराग्य। एंड देन ऋषि पतंजलि इसके बाद क्या कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान से भी ये स्टेज मतलब क्या, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि पा सकते। गॉट इट? ईश्वर प्रणिधान द्वा मतलब ऋषि पतंजलि से ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी आप संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि या तो हायर लेवल की समाधि पा सकते हैं। ओके, एंड सो देन उसके बाद में व्हाट इज ईश्वर, फिर ईश्वर प्रणिधान क्या है, उसके बारे में ईश्वर क्या है वो बताया है, ईश्वर प्रणिधान करने से फायदे क्या होते हैं, रिजल्ट क्या है वो बताया है, करेक्ट। इससे फायदे क्या होते हैं, अंतराय अभावश्च, दुखद और मना सहबुआ है वो भी चले जाते हैं। एंड देन ऋषि पतंजलि से अंतराय एंड वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि भावनार्थम, एंड कौन सा है दूसरा, वो तो बाद में। हाँ, ऋषि पतंजलि से ईश्वर प्रणिधान से 29 सूत्र, ईश्वर प्रणिधान के बाद में ऋषि पतंजलि ने कहा ईश्वर क्या है, वी हैव डन इट, ईश्वर क्या है, और ईश्वर प्रणिधान करने से क्या रिजल्ट मिलता है, तो ये रिजल्ट मिलता है तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, तथा ईश्वर प्रणिधान, तथा मीन्स ईश्वर प्रणिधान की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, हमारी अंदर की जो प्योर कॉन्शियसनेस है इसके साथ में कनेक्शन होता है, अधिगमो मतलब क्या हुआ, कनेक्शन, आनंद, सास्मित, संप्रज्ञात समाधि, वो लेवल पे पहुंचे, यस वहां पे पहुंचे। और साथ साथ में एक पे बहुत सारा फ्री, क्या है फ्री, क्या है फ्री, क्या है फ्री, क्या मिलेगा, अंतराय अभावश्य, अंतराय भी चले जाएंगे। और फिर अंतराय अभाव की अवस्था या तो संप्रज्ञात की अवस्था सिर्फ अभ्यास वैराग्य या तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही मिलेगी, और कोई रास्ते नहीं है, क्या ऋषि पतंजलि ने कहा है, he says नहीं, there are so many ways। क्या एक तत्वाभ्यास, वो वाह किया था, रिमेम्बर, इधर एक तत्व अभ्यास, और हमारे सांस पे ध्यान दो, या तो विश्व का जो जिसमें कोई दुख नहीं है, उनके चित्त पे, क्योंकि उनका चित्त दुख फ्री है, इसलिए हम उसके चित्त के साथ करेंगे तो हमारा चित्त भी दुख फ्री हो जाएगा। आइदर यू डू दैट। सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बिकमिंग वन, प्योर कॉन्शियसनेस, करेक्ट। एंड ऋषि पतंजलि ने ये सब दिया है। एंड देन लास्ट में कहा है कुछ भी करो, पर करो क्या, करो यथाभिमत ध्यान, और यथाभिमत ध्यान, जैसे ही तुमसे बन पड़ता है वैसे ध्यान करो। व्हाट इज ध्यान, व्हाट इज ध्यान, धारणा के बाद
देश काल समय, वो देश काल के ऊपर हमारे मन को कंसंट्रेट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। जब हमारा मन फोकस हो गया, जब हमारा मन एकाग्र हो गया, उसको हम ध्यान कहेंगे। किस चीज पे एकाग्र हुआ? यूजुअली हम बोलते हुए कोई भी, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्जेक्ट ओके, ऑब्जेक्ट। बट हियर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? प्रत्येक चेतना अधिगम, हमारे अंदर की जो चेतना है, पुरुष तत्व है, उसके साथ पुरुष अगर हम उस पे ध्यान करने लगेंगे, अगर हमारे अंदर का जो प्रत्येक चेतना है, यानी कि हमारे अंदर का जो पुरुष है, उसके साथ हम एकाकार होने लगेंगे, तो और वृत्तियां है बाहर की, वैराग्य हुआ है कि नहीं हुआ है? सारी वृत्तियां चली गई। पुरुष के साथ कनेक्शन भी हो गया है, प्यार में पड़ गए और पुरुष और हम एक होने लगे, एक होने लगे हैं, एक नहीं हुए, करेक्ट, हम वहां पे होने लगे। तो अभी चित्त पे बहुत सारे कचरे हैं क्या? हमारे चित्त पे बहुत सारे कचरे हैं क्या? बहुत सारे आवरण है क्या अभी? नहीं। हाँ, इसलिए ऋषि पतंजलि से कि क्योंकि अबे बाहर की वृत्तियां रही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में आप थिंकिंग हो रही है, पुरुष के बारे में कनेक्शन हो रहा है, और पुरुष के साथ में थोड़ा थोड़ा इलू इलू हो गया है अभी हमारा। सो वी हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग टू पुरुष नाउ, एंड सो एट दिस स्टेज हमारे चित्त की मोस्टली जितने भी कचरे हैं वो सारे हट गए, तो हमारा चित्त कैसा बना है? दैट इज अनदर स्टेट ऑफ समाधि। कैसा बना है हमारा चित्त? परमाणु परम महत्व अंतोस्य वशीकार। हमारा चित्त एकदम एकदम पावरफुल हुआ है, वशीकार हुआ है, एकदम कंट्रोल्ड हुआ है। कैसे कंट्रोल हुआ है? कि छोटा में छोटे से छोटा, ओके, परमाणु जितना। परमाणु मतलब क्या? अणु, अणु छोटा से भी एकदम। छोटा परमाणु, एटम, Smaller than atom. इलेक्ट्रॉन, हाँ, 0.36 कुछ ऑफ एटम ऐसा कुछ है। यस यस, हाँ, सो वो जो अणु का भी छोटे से छोटा हिस्सा है उसको हम परमाणु कहते हैं। अभी तो उसके परमाणु। बहुत सारे अलग अलग आ गए, राइट, करेक्ट। सो हमारा चित्त परमाणु एकदम छोटी सी छोटी बात को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड एकदम महान। हमारे पूरे सृष्टि में कौन सा महान तत्व व्यापक है, उसको हम समझ सकते हैं क्या? पुरुष हमारे आजू बाजू में इस वक्त कितने छोटे 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 जीव एग्जिस्ट कर रहे हैं? आर वी एबल टू करोड़ों। ग्रास्प दैट? वी आर नॉट। एंड पृथ्वी कितनी बड़ी है, आर वी एबल टू ग्रास्प दैट ऑल्सो? नो। वो कब कर सकेंगे? अगर प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने लगेंगे, तो क्या होगा? हमारे चित्त के सारे कचरे हो जाने के बाद चित्त में भी वो कैपेसिटी आएगी, एकदम छोटे से छोटा, बहुत ही सटल सूक्ष्म परमाणु के जितना जो सूक्ष्म चीज है ना, वो भी हम कनेक्ट कर सकेंगे, एंड बहुत महान चीज है, महान बात है, उससे भी कनेक्ट कर सकेंगे। दैट इज व्हाट द रिजल्ट वी विल गेट। दैट्स व्हाट ऋषि पतंजलि सेज। So we साधक gets, practitioner gets the power of चित्त। कौन सा? कि छोटी से छोटी चीज को भी वो रिफ्लेक्ट करे और बड़े से बड़ी चीज को भी ग्रास्प कर सके। एंड सो हमारा चित्त किसके जैसा बनने लगता है? पॉलिश्ड क्रिस्टल। दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट सूत्र इज टॉकिंग अबाउट। मणेर गहित्रु ग्रहण ग्राह्यशु ततस्त जनता समापत्ति। हाँ, मणि, मणि मतलब क्या? मणि, कौन से मणि सुने हैं हम लोग ने? स्वप्रकाशित होता है वो मणि। हाँ, स्वप्रकाशित होता है वो मणि होता है। हाँ, स्वप्रकाशित, नागमणि वगैरह, राइट, करेक्ट। हाँ, वो स्वप्रकाशित होता है, एंड स्वप्रकाशित भी होता है। लेकिन अगर हम लोग मणि या तो क्रिस्टल के बारे में बोलते हैं तो वो एकदम डर्टी डर्टी होता है, ओपेक होता है, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं क्या? नहीं। नहीं। अगर क्रिस्टल बोला, मणि बोला, मतलब क्या होता है वो? वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट, ग्लोबिन्स ग्लास, वेरी ट्रांसपेरेंट, करेक्ट। तो उसकी वजह से अगर हमारा चित्त ऐसे क्रिस्टल मणि की जैसा बना, ट्रांसपेरेंट बना, तो उसके नीचे जो भी चीज रखी जाती है, इट रिफ्लेक्ट्स इट कंप्लीटली फुल्ली
पूरे का पूरा। Yes. हाँ, अभी हमारे अंदर हम किसके साथ कनेक्ट होने लगे हैं? एक ही बॉयफ्रेंड है, Yes. एक ही हस्बैंड है, एक ही स्वामी है, एक ही बंदा है जिसके साथ मेरा आई कनेक्ट हो रहा है। वो कौन है? प्योर कॉन्शियसनेस। कैसा है? तत् सत चित आनंद। वो है ना, वो उसके पास सारा ज्ञान है ना, सर्वज्ञ। वी कॉल इट नो ओमनीपोटेंट, ओमनी पावर, ओमनिशियंट। So वो प्योर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू व्हाट? रिफ्लेक्टिंग थ्रू माय चित्त। सो मेरा चित्त कैसा बना है? पूरा प्योर कॉन्शियसनेस के जैसा। इसीलिए हमारे बहुत सारे योगी लोग या तो सिद्ध लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो उसकी एनर्जी है। क्या एनर्जी किसकी है? एनर्जी किसकी है? प्योर प्योर कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस। प्योर ये कॉन्शियस। बात है ना, मेरे को, मैंने वो सुना नहीं है, मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने ना वो भेजा था। ट्रेन देखी हम लोग ने, छुपछुप गाड़ी, ट्रेन, कोई भी ट्रेन, करेक्ट? ट्रेन के डब्बे में इंजन होता है? नहीं। सारे ट्रेन के डब्बे में इंजन होता है? नहीं। नहीं। हाँ, इंजन एक ही है, राइट? बाकी के सारे डब्बे, तो इंजन जहां पहुंचता है बाकी के सारे डब्बे पहुंच जाते हैं ना, वो तो खाली है। हाँ, लेकिन वो लोग भी विराम स्थान पर, यहां से दिल्ली, यहां से कहीं पे भी पहुंचता है। क्यों? किसके पावर से? हाँ, हमें लगता है डब्बे चलते हैं, डब्बे चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई? वो अपने पावर से चलते हैं क्या? नहीं, वो इंजन चलते हैं किसकी वजह से? इंजन। इंजन की हाँ, तो हम लोग जो भी, हमारा बहिर जो भी है, हमारे चित्त से लेकर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वो सारे कैसे है? पीछे के डब्बे है। बराबर? चलते हैं किसकी वजह से? आत्मशक्ति कौन सी है? प्योर Pure. कॉन्शियसनेस। हैव यू ऑल सीन दिस मैग्नेट? और स्कूल में हम लोग ने सबने ये ट्रायल मारा है। एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, आयन वाला होता है, काला काला वो होता है। हाँ, फिर हम लोगों को वो सबको वो कराया है। फिर उसके ऊपर हम एक निडल लगाते हैं ना, वो पिन होती है ना, पिन। फिर वो पिन के ऊपर दूसरी पिन लगाते हैं, फिर वो पिन के ऊपर तीसरी, चौथी, ऐसे पूरी लाइन बनती है। इज बनती है। पिन हैविंग दैट मैग्नेटिक पावर? नो। टाचनी, टाचनी, इज दैट पिन हैविंग मैग्नेटिक पावर? इट इज नो मैग्नेटिक पावर एट ऑल। पावर किसका है बॉस? मैग्नेट का। मैग्नेट का। वैसे ही चित्त है नो पावर। चित्त स्वयं प्रकाशित नहीं है, परम प्रकाशित है, मून के जैसा, राइट? वी रिमेम्बर दैट। हाँ, सो हमें लगता है हमारे मन की इतनी सारी शक्ति है। पावर ऑफ चित्त, पावर ऑफ कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, लेकिन वो पावर है चित्त का। लेकिन वो पावर चित्त का है क्या? चित्त हमारा कैसा है? खाली डब्बों के जैसा। पावर एक्चुअली किसका है? दैट इंजन। हु इज दैट इंजन। इंजन? दैट इंजन इज प्योर कॉन्शियसनेस। पुरुष। और वो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम जब कनेक्ट करने लगते हैं, इसकी वजह से हमारा चित्त इतना शुद्ध बनता है, और छोटी से लेकर के बड़ी बात सब कुछ वो बता सकते हैं। एंड दैट इज हाउ ऑल अवर अणु भट्ट से, अरे भट्ट से लेकर के सारे जो भी लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़ी चीजों के बारे में कैसे बताया। उन लोग के पास दूरबीन, ये वो कुछ था सामान जो अभी सब लोग ने ढूंढा है, वो सब था उनके पास। स्टिल whatever they told about the whole universe, they were accurate. Why? How? It is the power of pure consciousness. Where is the power of pure consciousness? Everywhere. हमारे गुजरात में, आत्माए आत्मन ने ओळख्यो, रस ज्योत निहाળી नमु हूँ नमु. So that pure consciousness is getting reflected everywhere. Pure consciousness is within, pure consciousness is around. We connect pure consciousness to pure consciousness, तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है. We become the whole ब्रह्मांड. कहीं पे भी जाना है, मैं यहाँ हूं कि यहाँ हूं, मेरे लिए सेम ही है, राइट? जूम करके वहां पे पहुंचा. क्यों पहुंचा? हमें कोई ट्रैवल ही नहीं करना, बिकॉज इट इज देयर, इट गेट्स प्रगट देयर, apragata here. You understand? And so that is how it is. So Rishi Patanjali says that, because of Abhyas Vairagya, Ishwara Pranidhan, and because of all that practices, our chitta becomes very shuddha, parishuddha बनता है, और उसकी वजह से वो क्रिस्टल क्लियर जैसा बन जाता है, और उसमें हमारे सिस्टम को इतना पावर मिलता है कि it can absorb anything and everything.
एंड ये चित्त की अवस्था को कहते हैं, ये समाधि की अवस्था को कहते हैं समापत्ति. व्हाट इट इज? संप्रज्ञात समाधि. समाप्ति नहीं, समापत्ति. Samapatti means what? Samapatti is the state of chitta, state of mind, where chitta is completely engrossed, completely absorbed. इधर उधर कहीं पे भी वो नहीं है, एकदम फोकस. बिलोरी कांच को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ग्लास जो होता है, मैग्नेटिक नहीं, क्या बोलते हैं उसके? ओ गॉश, वो ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग. थैंक यू सो Magnifying. मच. मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग ने सबने बचपन में किया है. हम लोगों को सूरज का वो कोई जलाता नहीं है, करेक्ट, बट वी ऑल हैव ट्राइड दैट, यू नो, व्हेन मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से जितने भी आजू बाजू में सन के रेज है उसको हम कंप्लीटली फोकस करते हैं. इट कैन बर्न, या complete absorption is that our chitta has no other vritti, only completely absorbed in one and only one thing, pure consciousness. And our chitta is so powerful that it can do any wonderful things. It can छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक वो कर सकते हैं. और यहाँ पे और कोई वृत्तियां हैं अभी? अगर यू नो आत्म पुरुष, या तो पुरुष विच इज आउटसाइड, सब वही उसी के साथ अगर कनेक्टेड है तो अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू प्योर कॉन्शियसनेस ओनली, राइट? ऋषि पतंजलि सेज दैट व्हेन दिस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन लेवल कम्स, देन व्हाट हैपेंस? उसके बाद में ऋषि पतंजलि सेज इन या सो वहां पे शब्द, ज्ञान, अर्थ, अलग अलग जो भी ब्रेकेजेस है, ब्लॉकेजेस है, डिफरेंट, ऑल दैट बिकम्स वन, एंड वी रीच टू सवितर्क समापत्ति. समापत्ति इज व्हाट? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन. दैट एब्जॉर्प्शन, सब कुछ शब्द है, ज्ञान है, अर्थ है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं थे. वी नो वन एंड ओनली वन थिंग. We don't need to describe what Purusha is. We know what Purusha is. We are becoming what Purusha is. And that level is known as Savitarka Samapatti. And then Shri Patanjali says that when we reach to that Savitarka Samapatti, complete absorption with the pure consciousness, when that is happening, correct? And so then what happens? When कंप्लीट, हाँ, सो जो वो वृत्तियां थी वो मेमोरी फॉर्म में या तो कोई बीज फॉर्म में, करेक्ट, वो स्मृति, वो संस्कार भी अगर साफ हो गया, ओके, हम में से अभी बहुत लोगों को मालूम होगा कि अभी तो कोई वो नेगेटिव रखते ही नहीं है, राइट? हम लोग ने सबने फेंक दिए हैं. लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव था, ओके, पॉजिटिव है, हमारे पास फोटो है और बहुत ही लाइट हो गया है, ऐसे हल्का हल्का देख रहा है, आर वी एबल टू डेवलप दैट ऑल्सो, राइट? Yes. वाई? बहुत ही हल्का हल्का है, बट स्टिल वी कैन डेवलप दैट, राइट? क्यों? क्योंकि अभी भी वो बीज है. when that is also been erased. Can we again bring that photo in life? No. ऋषि पतंजलि says when that छोटे से वो स्मृति के जो संस्कार के जो बीज है वो भी जब खत्म हो जाएंगे, can there be any further sprouting going to happen? No, that is not going to happen. And so that time mind has any idea, any thought. When mind became like Purusha, mind is Purusha. Is there any difference? Is there any thought about Purusha? Is there any thought about any other thing? Other thing तो पहले ही गया था, अभी thought about Purusha भी नहीं रहा. तो माइंड कैसा बना? स्वरूप शून्य. तो स्वरूप शून्य टिंग टिंग हुआ. स्वरूप शून्य इज नोन एज व्हाट? Thoughtless. स्वरूप शून्य अवस्था इज Thoughtless. समाधि. हाँ, Thoughtless samadhi. हाँ, थॉटलेस समाधि. ऋषि पतंजलि says that
अभी कोई भी तर्क नहीं रहे, कोई भी विचार नहीं रहे, आनंद नहीं, यू हैव बिकम प्योर कॉन्शियसनेस. एंड सो आनंद ऑफ नोइंग प्योर कॉन्शियसनेस इज देयर. नो, यू आर आनंद स्वरूप, you are Sat Swarup. So no other Swarupa, no other Rupa is there. When no other Rupa is there, that level Rishi Patanjali says is Nirvitarka Samadhi. स्मृति परिशुद्ध, हमारी स्मृति एकदम शुद्ध, हाईएस्ट लेवल की शुद्ध हो गई. शुद्ध हो गई मतलब कोई भी स्मृति नहीं रही, सारी स्मृति याद चली गई. तब स्वरूप शून्य, कोई कोई चीज के साथ हमारा माइंड कनेक्ट ही नहीं करता है. पुरुष का, मैम आपने तो अभी बोला पुरुष के साथ कनेक्ट करता है. पुरुष का कोई आकार है क्या? कोई मेजरमेंट है क्या? काला है, गोरा है, ऊंचा है, पतला है? हाँ. सो पुरुष इज व्हाट? लाइक का लाइट. लाइट का कोई आकार है क्या? प्रकाश का कोई आकार है क्या? नहीं. सो योर चित्त बिकम्स लाइक प्रकाशमय. एंड सो नो आकार, स्वरूप शून्य एव अर्थ मात्र निर्भाषा. यू जस्ट बी अवेयर ऑफ योर प्योर कॉन्शियसनेस, योर ओन एग्जिस्टेंस. दैट लेवल इज नोन एज निर्वितर्का, इज नोन एज निर्वितर्क समाधि. निर्वितर्क समाधि is nirvichara samadhi. And then in next sutra, Rishi Patanjali says, this is how we can understand about Savitarka and Nirvitarka. And this, talking about Savitarka Samadhi, Nirvitarka Samadhi is very sukshma vishay, right? So this is a very sukshma vishay and we can understand about this, that. And this sukshma vishay, about the, it leads to what? Sukshma, subtle object, subtle understanding. Leads to what? What is Prakriti, by the way? What is Prakriti? Triguna. Trigunaत्मक. Sattva, Rajas, And what Tamas. is- Yes, Sattva, Rajas, Tamas, Trigunatmak. And what is about that, Prakriti, which is root cause, which is Samanavastha. उसको हम लोग कहते हैं प्रधान. व्हाट इज दैट प्रधान? उसमें सत्व रजस तमस है In equilibrium. कि नहीं है? इक्वल Equilibrium. हाँ, समान अवस्था. वो क्या है? वो मैनिफेस्टेड है कि अनमैनिफेस्टेड? व्यक्त है कि अव्यक्त है? अव्यक्त है. अव्यक्त है. वो पुरुष है? नहीं. नहीं. वो पुरुष है? नहीं. So when we reach त्रिगुण है to तो- निर्वितर्क समाधि अवस्था, that time, subtle aspect. So we are able to understand Prakriti because of what? Sattva, Rajas, Tamas. Because of what? Because of Sattva, Rajas, Tamas का जो manifested रूप है, असमान अवस्था की वजह से हम लोग प्रकृति को. Are we able to understand what is समान अवस्था प्रकृति is all about? वो भी है. पुरुष उससे भी अलग होता है, राइट? पुरुष इज सेपरेट एंड प्रकृति. हाँ. सो अवर चित्त, when it becomes completely absorbed in Purusha, our mind, our chitta can understand that samana avastha prakriti alinga. Alinga मतलब, लिंगा मतलब symbolized, लिंगा मतलब manifested, व्यक्त स्वरूप. लेकिन जो अव्यक्त स्वरूप है, प्रकृति सेपरेट, पुरुष सेपरेट. वहां तक हमारा मन सोच सकता है, समझ सकता है. हमारा मन, हमने लोगों ने क्या कहा है? आइसबर्ग की तरह है, राइट? कितने लेवल है हमारे चित्त के? जागृत, अभी हम लोग ने बोला ना सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस में कितने लेवल है? Innumerable levels. When we say chitta means all the level of consciousness. Is it conscious? It is not. But consciousness is getting reflected in. तो हमारा जो है अभी कॉन्शियसनेस हमारे चित्त में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए तो चित्त हमारा काम कर रहा है. बट एट अ वेरी ग्रॉस लेवल. योगी का चित्त गोज टू दैट सटल लेवल. ऋषि पतंजलि सेज कि ये अलिंग तक, प्रकृति तक जो भी समझ है या जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस ता एव सबीज समाधि. All are known as samadhi. Of course, it is samadhi, but it is sabija samadhi. And so we have to go beyond vichara.
And when we become expert in nirvichara अवस्था, no thought level or zero thought level, तो क्या मिलेगा? है ना, हम भक्ति की चरम सीमा पे पहुंचते हैं तो क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है ना। यहाँ पे भी प्रसाद मिलेगा। कौन सा प्रसाद मिलेगा? We will see about that prasad of Adhyatma in our next class. Namo Namaha. Thank you so much. In the whole week, we will try to reach Adhyatma Prasada. May we all reach to not only Adhyatma Prasada, Ritambara Prajna, and ultimately to the highest realization in this very life itself. Namo Namaha. Thank you so much. We will do one Om and complete the class. Some of you, please remind me today itself to send notes till here. Okay, please remind me to send notes till here so you can go through it. I hope we have understood it, right? Correct? But we all know ये सब actual understanding कब आएगी? When we will go through. हम लोग वो लेवल की बात कर रहे हैं, उसके कोई भी कहीं भी आसपास में भी हम नहीं रह रहे। हम लोग बोलते filthy rich. What is filthy rich? हम middle class will never ever able to understand, right? Correct? Correct? अरे वो क्या होता है एग्जैक्टली और मेरे को भी लगता है कभी कभी ऐसे मैं सोचती हूँ कि वो बिल गेट्स या तो जो भी मतलब उन लोग का क्या है, खाते तो वही है यार, दाल चावल सब्जी रोटी, रहते वो सोते, लेकिन what it is and what must be the feeling? How will I understand when I reach there, right? Otherwise you cannot think about it. Exactly like that. No, we will be able to, then there is no need to think, we become that. Till then, at least we will try to understand it. क्यों? तो at least हम लोग को लगता है यार ये तो बहुत मस्त है यार, मेरे को भी चाहिए. So if you have that desire to reach that, कभी ना कभी तथास्तु हो सकता है, right? पहुंच जाएंगे. Okay, we'll do one Om, or short, more long, and complete the class. Inhale. Om. Om Shanti Shanti Shanti. A very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Thank you so much. Namo Namaha. Namo I Namo, think ma'am. today we are Namo slightly Namaha. better in understanding, right? Good. I'm happy. Namo Namaha. Yes. Remind me today Namo to Namaha. send you all notes till this, so you will be able to. उसके साथ में थोड़े पीछे के भी सूत्र है, but no problem. I will send it, and so next week we can go ahead with that. Namo Namaha. Thank you so much. Namo Namaha. मैम एक बात बतानी है आपको. हाँ. मैंने कल के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया था जस्ट ये इंटेंशन से कि आपको फेस टू फेस मिलना, मतलब चांस अच्छा. मिलेगा. हाँ बट हाँ. अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कल नहीं आ पाई. बट मैंने वो मेरे सर को फॉरवर्ड किया था तो वो आके उन्होंने अटेंड किया और फिर रात को उन्होंने मुझे बताया आपका जो. अरे वाह. तो वो हाँ, मुझे मिले नहीं थे. नहीं मिले शायद आपसे. ओ कोई बात नहीं. हाँ, मिले होते तो मैं आपका नाम देते तो मैं आपके डायरेक्टली कनेक्ट हो गई होती ना. चलो हाँ. कोई बात नहीं. वॉज ही हैप्पी टू अटेंड? बाकी सच्ची में ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड. मेरे को तो लग ही रहा था, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. हाँ मैम, हाँ उन्होंने यही बताया कि सेम विचारधारा वाले लोग एक साथ में आके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिया. ट्रू ट्रू ट्रू. या यस. और मुझे लगता है कि इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस.
एंड Yeah. इट वाज लाइक थोड़े ही लोग थे, मतलब थोड़े नहीं, वैसे तो थे 100 से ज्यादा, 100 के करीब तो होंगे ही। सो लेकिन जो भी थे, हाँ, लेकिन अभी नाउ आई थिंक दे विल डू इट मोर टू रीच मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीवन, नॉट ओनली स्टूडेंट्स और नॉट ओनली टीचर्स, बट इट विल नाउ स्लोली स्लोली ग्रो। कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। सो वी ऑल विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट मैंने भी सोचा कि मैं उनसे बात करती और बोलूं कि भाई वॉट एवर कल बात हुई उसका कोई सुवेनियर या ऐसा कुछ बाहर निकाले, सो एटलीस्ट पीपल कैन कम टू नो। और अभी उन लोग ने रिकॉर्डिंग तो कल किया था, अगर इफ यूट्यूब पे या कहीं पे भी उनका रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराए या ऐसा कुछ भी हो जाए तो भी एटलीस्ट यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू व्हाट आईकेएस इज, व्हाट इंडियन थॉट, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज, आप वो समझने लगेंगे, राइट? Yes, ma'am. ओके, मैम हमें भी इस पर आई बोलते एम रहिए, हम हैप्पी कैसे और दैट काम यू कर ट्राइड। सके। हाँ हम लोग भी इसके लिए कैसे काम कर सके वो भी हमें बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वो होता रहेगा। मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, चिपकाऊंगी ही सबको। मैं तो फेविकॉल हूँ। ऊपर टाइम ना हम लोग भी। Yes, we all see. It is never one person's job. That is what I really wanted to bring it out, but I couldn't bring it out because there, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना कि अगर मोदी जी का नाम ले लिया तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम हो गया। लेकिन that's what see, that is what was the is the speciality of मोदी जी। वो हम लोग को सबको इन्वॉल्व करते। मैं ये इसके बारे में ही सोच रही थी, वो पेंडेमिक में हमें क्या करना था, हमें तो घर में ही बैठना था, बट ही इन्वॉल्व अस। कैसे? ताली बजाओ, थाली बजाओ। यू अंडरस्टैंड, वी वर सी, हम और कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे घर में बैठना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे दिया करो, करेक्ट? उससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? इतना तो करो भाई। सो वी विल फील समवेयर वो लकड़ी लगाने का कार्य, कि हमें लगे कि कहीं कहीं पे भी अगर हमें लगे ना कि आई एम यूज्ड, आई एम कनेक्टेड, आई एम यूटिलाइज, यूज्ड मींस आई एम यूटिलाइज, देन वी गेट कनेक्टेड। अगर मेरा कुछ भी रोल नहीं है ऐसे तो मेरे को थोड़ी इंटरेस्ट है, मेरे को थोड़ी मजा आता है। हाँ, सो दैट इज व्हाट समाज के हर एक स्तर को, सी मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज फेल्ड। हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, क्योंकि कल जो थे वो इकोनॉमिक्स वाले एक दूसरे प्रोफेसर भी थे और ये अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले थे, नॉट इकोनॉमिक्स बट कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले थे। तो वो वही बोल रहे थे, मतलब उसको बाद में बात होती है ना, तो कह रही थी मैं कि कितनी सारी पॉलिसीज आई और गई। इकोनॉमिक्स में कितना कितना कंटाल आता था। एनीबडी फ्रॉम कॉमर्स आस्क मी, करेक्ट? इतना बोरिंग। अरे भाई यार, व्हाई? बिकॉज वी कांट कनेक्ट यार। कितने साल हो गए, अभी भी पॉवर्टी पे ही काम कर रहे हो यार, कुछ निकलता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज नो बडी वॉज इन्वॉल्व, नाइदर पुअर नोर समर्थ, कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। So when we are, keeping it, doing it for somebody, but nobody is involved, then you cannot contribute at all. And that's why involvement is most important. करेक्ट? एंड सो हमारे जो जो भी लेवल है, छोटे छोटे लेवल पे भी अगर हम लोग इन्वॉल्व होने लगेंगे ना, तो डेफिनेटली हो जाएगा, कारवा बनता जाएगा और हम पहुंच जाएंगे, राइट? ओके, नमो नमः। सेकंड थियरी चालू करना है मेरे को, इसलिए नमो नमः। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी Thank you, क्वेश्चन, ma'am. नेक्स्ट टाइम हमारा आराम से लेंगे अपना, ठीक है? थैंक यू सो मच। नमो नमः। Thank you, ma'am. नमो नमः मैम। नमो नमः एवरीवन। जेन्युइनली थैंक यू, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा था कि भाई ये हो जाएगा कि नहीं, करेक्ट? पर हो गया। थैंक यू।